Namaskar friends, welcome to Minds of UPSC. Before we begin polity, let me ask you a simple question. Who really runs India? You have to think on it. Who really runs India? सोचो. Is it a person who is ruling the country, or is he the person who is ruling your state, or the DM, or your locality? What do you think? Okay, let us analyze. It is not the person you have voted for. It is a group of small people. You can say around 25 people sitting in Delhi. These are called the cabinet ministers. They can change anything. In India, they have almost so much powerful that they can change your tax, change your job, change your freedom, and sometimes even the nation's mood as well. This is like a small team who is ruling India. And the funny part is that the constitution never fix that number. It says that only council of minister must be within 15% of the Lok Sabha seat. And within council of minister, you will see the core members are the cabinet members. It's like a PM choosing a team for running a country, and all the core members are the part of cabinet. And PM literally has a power to choose who to bat, who to ball, who to get dropped, or who can open, where to field a person, where to field a particular person, long on, long off, on the leg, or at the wicket keeping, whatever. The PM has that authority, right? So in India, you know already who is the PM. Now let us see all this thing we will study in polity. You may find polity a boring subject because many take polity equal to Lakshmikant, and Lakshmikant is a lengthy book. Lakshmikant is a book with minimal diagram and minimal structured ways, so it is very hectic to understand, to read all those long form of paragraph from the Lakshmikant. But here we will not try to memorize, we will not try to rectify all those things, but we'll try to understand how power flows, how constitution work, and how different form of government act according to situation, according to subjects. And we'll also look at the limitations that constitution put upon the authority who is leading India, whether it is executive, whether it is legislature, or whether it is judiciary. Now, before starting, let us look at the Constitutional Assembly. If we look at Constituent Assembly, who is responsible for framing the constitution, and you already know that who is the president of constitution, who is the president of Constituent Assembly? Can anyone write in the comment? Okay, now who is the head of drafting committee? Okay, these two answers you have to give in the comment section. And let us see, when the Constituent Assembly met in 1946, they didn't write a book, they write
the spirit of India. They write the future of India, the future as a constitution. A constitution which is responsible for running the country, which is responsible for limiting the power of executive, which is responsible for providing rights, fundamental rights to the person, which is responsible for ensuring your fundamental duties, and which is also responsible for providing for the judiciary. As well as there are some, of course, flexibility, as well as there are some rigidity. So to ensure that constitution is not a book, rather it should be a living document. A living document which can be changed according to situation, according to dynamics, according to conditions. And that's the reason why the constitution still is one of the best constitution around the world, because of that flexibility. Now today I am starting a batch of polity, and you all future administrator, future officers, you are stepping into a same legacy, because you will also part of that executive. And if you are part of that executive, you must have to be very precise, and you must have to be clarity in the domain, how polity work, how governance system work, and how India is India that it is now, how constitution has made India a dynamic one, a diversified one, as well as protecting that diversity, protecting that unity, even after having so much diversity around the country. So welcome to polity, a subject that starts with the constitution but ends with the understanding of India. Now let us start our journey from constitution to the understanding of India. When you are understanding the constitution, you are trying to understand our country and India, that is Bharat. You all know that constitution is starting from the article 1, which says that India, that is Bharat. ठीक है, तो हमें भारत को समझने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन को समझना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना पड़ेगा. एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ अवर पॉलिटी क्लासेस. आई एम शुभम सुगंधी. आई हैव गिवन 6 UPSC मेंस, एंड let us start our class. Before starting, let us look at the format, how we will continue our class. We will start with historical background and making of the constitution. What was the premises that was there which led to the creation of constitution, and what were the factors responsible, how we have created the constitution. All those things will be understood in the historical background and making of the constitution. Then we will look at the salient features of the Indian constitution. We have made a book, the supreme book for regulating India, for legislating India, for defining India, and that is the book which we known as constitution. And we will learn what are the basic features, what are the features of constitution, the overall perspective. What is the role of constitution, what is constitution, what is the purpose of bringing constitution. All those things, the philosophical dimension, the philosophical tilt will be covered in the second part, that is salient features. And then we will look at the preamble. Preamble is the mirror to our constitution. If you want to look at the constitution, you should look at the preamble. Preamble just reflect all the basic
qualities of the constitution. What is the basic, or you can say it's like a DNA of your body. If you look at the DNA, you can get information about your body. In the same manner, preamble also, you can consider it as a DNA. Then union and its territory. After that, we will cover citizenship and fundamental rights. Citizenship is in news for the last 5 to 10 years because of various issues, Rohingyas, in immigrations as well as emigration, along with that CA issues. Therefore, citizenship is important in the coming years as well. Along with that, in presently SIR and Aadhaar verification, all those things we can link with the citizenship. After that, we will cover the fundamental right. One of the most important topic, one of the most important feature, that is the fundamental right. The rights which are fundamental means no one has the authority, no one has that power to take that rights from you. There are some limitations, there are some conditions that has been given by constitution in the manner in which your rights can be taken away, but these rights in normal condition, they must have to be provided to you, they must have to be enforced by the judiciary, as well as this right ensure that government should not over regulate you, should not over administer you, and should not over control the rights of an citizen. Now after that, we will cover DPSP's directive principle of state policies, and then we will cover fundamental duties. What are the duties and what are the rights? All those things, all the differences, and what is the meaning of fundamental, what is the meaning of legal, it will be covered in the upcoming session. Then we will look at amendment of the constitution. How many amendments were there, how many amendments has been brought, and what were the factors which led to the amending of the constitution. Then we will have parliament, executive and judiciary. Parliament, executive and judiciary, or you can also say legislature, executive and judiciary, the three pillars of democracy. Then we'll cover federal system, center state relation. You are seeing the news of governor having tussle with CM, governor versus CM, or you must have seen the issue of lieutenant governor versus the AAP government in the Delhi, UT of Delhi. So what is the relation between center and state, what is the relation between center and UT, all those things will be covered in the 7th part. Then we will cover constitutional and non-constitutional bodies. The bodies which has been mentioned in the constitution and which derives its power from the constitution, it is known as constitutional body, and which has not been mentioned in the constitution is non-constitutional, or you can say it is extra constitutional. Now we will look at local government, UTs, tribes and schedule area. लोकल गवर्नमेंट सभी को पता है, यूटीज, ट्राइब्स एंड स्केड्यूल एरिया, ये सब हम देखेंगे. नाउ इन द 10th पार्ट वी विल सी द पॉलिटिकल डायनामिक पार्टी सिस्टम, political party. We will also see the pressure group, how pressure group perform pressure and redefine the policies, or you can say they try to influence the policy for their vested interest, for their selfish interest. We will also see the anti-defection as well as elections. Election is one of the important topic from the perspective of mains as well, right? Election and the electoral disqualification and
that RPA Act, Representation of People Act 1951. All those things will be covered in the part of election. Then we will also look at the emergency provisions. Emergency provisions, it has been taken from the Germany. ठीक है, जर्मनी आपको पता होगा, हिटलर का जर्मनी, तो हिटलर के जर्मनी पे किस तरीके से वो उन्होंने एमरजेंसी प्रोविजंस थी, और उसके बाद में किस तरीके से जो वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके अंदर एमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। तो वहीं से जो है वी हैव टेकन, वी मीन्स द ड्राफ्टिंग कमिटी हैज़ टेकन द एमरजेंसी प्रोविजंस। थोड़े बहुत मोल्ड किए हैं उन्होंने, बट मोर और लेस द आइडियाज़ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द Weimar, or you can say German constitution. Then we will also see the recent development, Supreme Court judgment, amendments and all those things that has been taken or is continuing in the current process. For example, Supreme Court judgment on various incidents, for example Aadhaar, privacy, as well as right to privacy हो गया, and right to internet हो गया, all those things, right to healthy environment, right to education. These are the recent development that has been taking place, along with the issues of CAA, accordingly the issue of SIR and delimitation. All these things, all the recent development we should be covering in our session, as well as we will also look at the amendments, all the amendments that has been done in our constitution. So this will be the sequence, this will be the more or less the broad perspective how we are going to cover our polity subject. Now starting with the historical background and making of the constitution. थोड़ा सा एक बार I want to connect with the story. Let us look at the historical background and making of the constitution. What is the meaning of constitution? Why the constitution should be brought in? What is the role? How it regulates, how it governs the country, how it can regulate a government, how it is performing its what it want to perform. ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, बिफोर टू अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग वी मस्ट हैव लेट अस लुक एट अ स्टोरी. द स्टोरी इज ऑल अबाउट आवर एंशियंट पैलियोलिथिक मैन. ठीक है, इफ यू लुक एट द पैलियोलिथिक मैन और पैलियोलिथिक पर्सन, लेट्स बी जेंडर न्यूट्रल. पैलियोलिथिक पर्सन क्या होता था? दे यूज टू लिव इन ग्रुप. दे जनरली हंट. दे वेर द हंटर गैदरर. हंटिंग भी करते थे, गैदरिंग भी करते थे. अब जो उनका जो बैंड है, ये जो ग्रुप है तो उसको बोलते थे बैंड, BAND, बैंड. ठीक है, अब ये जो है ग्रुप है, इसके अंदर से लेट से 15 या 20 आपके पास में अलग अलग एज के, अलग अलग प्रोफाइल के आपको यहाँ पे मेंबर मिल रहे हैं. कोई मेल है, फीमेल है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है. अब इसके अंदर क्या हो रहा है? दे आर गोइंग हियर एंड देयर इन अ ग्रुप. दे आर एक्टिंग एज अ ग्रुप. अब ग्रुप में क्या होता है आपको पता है, एवरीवन हैज़ देयर ओन पर्सपेक्टिव टू थिंक, everyone has their own point of view, have their own version of reality. और इसके साथ में हर व्यक्ति आपके इशारों पे नहीं चलेगा. ठीक है, और ऐसा कुछ उस समय तो इतनी समझ भी नहीं थी. तो ये लेट से ये A हो गया, ये B हो गया. A चाहता है वो अपने हिसाब से काम करे, B चाहता है वो अपने हिसाब से काम करे. बट ये जो ग्रीन है, ये ग्रीन चाहता है कि सब मेरे हिसाब से काम करें. A वाला तो मान नहीं रहा है, B वाला भी मान नहीं रहा है, बट ये जो ग्रीन है, ही और शी wants to control your what we can say, control your or you can say influence you to take decision according to him or her. Let us look at the green one. green one ने आपको कोशिश करी आपको रेगुलेट करने की. अब आपने ग्रीन वन को क्यों चूज़ करा? क्यों, किस ग्रीन वन के पास में अथॉरिटी कहाँ से आई?
ठीक है, ग्रीन वन के पास में अथॉरिटी आई, लेट्स से अलग अलग तरीके से आ सकती है, या तो ग्रुप ने ही उसे प्रोवाइड की है कि भाई आप थोड़े से डिफरेंट हो, यू हैव सम मैजिकल पावर, आइदर यू हैव सम फिजिकल पावर, या फिर आपके इंटेलिजेंट हो, या फिर एक्टिव हो, या फिर यू नो हाउ टू यूज़ बो एंड एरो, यू नो हाउ टू यूज़ हंट, हाउ टू डू हंटिंग। इस तरीके से क्या है, ये ग्रीन वालों को हमने एक, ये ग्रुप ने क्या दिया था, अथॉरिटी दी थी कि आप रूल करो। ठीक है, अब ये रूल कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट क्या हो रहा है, धीरे धीरे ही इज़ ट्राइंग टू कंट्रोल, शी इज़ ट्राइंग टू कंट्रोल द फिजिकल एस्पेक्ट एज वेल एज मेंटल एस्पेक्ट एज वेल एज ही इज़ ट्राइंग टू रेगुलेट द एक्शन ऑफ द ग्रुप। ठीक है, तो एक्शन क्या है, अथॉरिटी आपको दी है, बट आप क्या कर रहे हो, ओवर रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जब ओवर रेगुलेट कर रहे हो तो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगा। तो एक को लेट से ये वाला पर्सन है, ये बोले मेरे पास भी इतनी अथॉरिटी है, मैं भी ये कर सकता हूँ, ये कौन होता है, तो लेट से एक दिन ये वाले को मार के ये अपने आप को कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश कर लेता है एज अ सुप्रीम। ये बोलता है कि आई विल कंट्रोल, आई विल लीड द ग्रुप, बिकॉज वो जो था ग्रीन वाला वो अपने आप को ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के कह रहा था, या फिर ज़्यादा ही अपनी मनमानी कर रहा था। ठीक है, अब ये एकदम से रैंडमली आप किसको मार रहे हो, ग्रीन वाले को, और ये बन जाए। ठीक है, अब ये जो है ये अपने हिसाब से भाई, ये अब जब किसी को मार के बनाए तो वो भी चाहेगा कि फिर कहीं ना कहीं उसे भी डर रहेगा कि कोई ना कोई उसको आके रिप्लेस कर सकता है, तो वो कहीं ना कहीं वो भी डरा धमका के रखने की कोशिश करेगा ग्रुप को। अगर उसके पास में दैट फिजिकल फीचर है जो पहले वाले के पास में थे तो बहुत अच्छी बात है, ग्रुप एक्सेप्ट करेगा, अगर नहीं है तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन ही ऑल्सो रिमेन इन द दैट अनसर्टेनिटी कि कुछ भी हो सकता है, और ये भी क्या चाहेगा, और धीरे धीरे आप जब देखोगे जब पावर आते जाती है तो ये भी क्या स्टार्ट हो जाता है, ये भी अपने हिसाब से मनमानी करना स्टार्ट कर देता है, और लोगों को ओवर रेगुलेट करने की, ये जितने भी पर्सन्स हैं उन सबको ओवर रेगुलेट करने की कोशिश करने लगता है। ठीक है, यही अब धीरे 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 आप ये जो पैलोलिथिक मैन वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो पर्सन रूल कर रहा है, इसको आप धीरे धीरे विद टाइम आगे बढ़ते जाओ, 100 ईयर, 1000 ईयर, 10,000 ईयर्स, धीरे धीरे आप आओगे 2000 BC के आसपास, IBC के पास आ जाओ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सिस्टम कन्वर्ट हो गया है मोनार्की के अंदर। मोनार्की के अंदर क्या हो गया है, एक किंग रहता है, किंग इज़ द सुप्रीम, किंग कैन टेक डिसीजन बेस्ड ऑन हिज और हिज विल, वो अपने हिसाब से डिसीजन ले लेता है और चाहता है कि लोग जो है उसके डिसीजन को फॉलो करें। ये हो गया मोनार्की। मोनार्की के पास में पावर किसके हाथ में, एक सिंगल पर्सन के हाथ में आपको पावर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आपको देखिए ये वाला जो सिस्टम पहले जो होता था रेगुलेट ग्रुप को लीड करने वाला, ये यहाँ पे क्या हो गया, करप्ट हो गया है। अब ये पावर क्या हो गया है, एक ही व्यक्ति के हाथ में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर आपको देखने को मिल रहा है। अब जब पावर कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है तो अब्यूज़ ऑफ पावर भी होता है। अब्यूज़ ऑफ पावर क्यों होगा, वो अपने मनमाने हिसाब से काम करेगा। जब अब्यूज़ ऑफ पावर हो रहा है तो पावर अपने खुद के सेल्फ बेनिफिट के लिए, सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए आपको ये यूज़ करते हुए देखने को मिलेगा। अब जब सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप देखोगे बहुत सारे ऐसे लोग जब इसको देखते हैं तो दे वेयर ऑलवेज इन एनवी, ईर्ष्या में रहते हैं, ऑलवेज इन दैट नेगेटिव पर्सपेक्टिव अबाउट दैट पर्सन, अबाउट द रूलर। तो ये भी क्या करेंगे, ये चाहेंगे कि ये इसको ख़त्म करके दे विल ट्राई टू सिट ऑन द थ्रोन, दे विल ट्राई टू बी ऑन दैट गद्दी। तो आप देखोगे ये वाला जो है इसको मार के दूसरा वाला हमेशा फिराक में रहता है कि कहीं ना कहीं वो गद्दी पे बैठ जाए। तो इससे क्या होता है, इंस्टेबिलिटी आती है और कोई भी रूल चलते हुए आपको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं दिखता है। अब एक ग्रीन वाला को भी देख के कोई ना कोई जेलस हुआ होगा या होगा एंड कहीं ना कहीं वो भी कोशिश करेगा कि इसको रिप्लेस कर दिया जाए। तो इससे क्या हो रहा है, इंस्टेबिलिटी आ रही है। लेकिन इसके साथ में आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर हो रही है और अब्यूज़ ऑफ पावर हो रहा है। ठीक है, अब ये वाला जो सिस्टम है ये क्या है, डिस्टेबलाइज करता है सोसाइटी को, कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइज करता है पॉलिटी को एज वेल एज रेगुलेशन को। जो हमारा रोल था कि भाई रेगुलेशन करना है, अच्छे से लीड करना है, सोसाइटी का प्रोग्रेस होना चाहिए, ग्रुप की लीडिंग होनी चाहिए, लोगों का अच्छा होना चाहिए, वेलफेयर होना चाहिए, वो सब कॉन्सेप्ट छूट गया, यहाँ पे इंस्टेबिलिटी आ गई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें नहीं हो रही है, वो सब चीज़ें हो रही है, लेकिन बट एट द सेम टाइम इंस्टेबिलिटी इज़ ऑल्सो देयर। तो ये जो सिस्टम है जहाँ पे एक पर्टिकुलर व्यक्ति के हाथ में पावर है, क्यों ना ये सिस्टम को ही बदल दिया जाए। तो सिस्टम को क्यों किस तरीके से बदलेंगे, तो अलग अलग एक्सपर्ट्स आए, बहुत सारे थिंकर्स आए, वो धीरे धीरे करके
आपको एक देखने को मिल जाएगा सिस्टम दैट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर आप कह सकते हो लॉ। लॉ मीन्स कानून, या फिर अ रिटन डॉक्यूमेंट जहाँ पे बताया गया है कि आप किस तरीके से रूल करोगे, किस तरीके से रेगुलेट करोगे। धीरे धीरे ये जो रिटन डॉक्यूमेंट है, जो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स ने मिलके या फिर जो वहाँ के बहुत सारे जो टॉप मिनिस्टर्स हो गए, उन्होंने सब सोच समझ के जो रिटन डॉक्यूमेंट बनाया है टू रेगुलेट, टू लीड द कंट्री, ये आप देखोगे धीरे धीरे ही आगे बढ़ के कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का रूप ले लेता है। ठीक है, कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है तो वो सिंपल से स्टार्ट होती है, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होते जाती है। तो आज आपको जो इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा देखने को मिल रहा है, इट हैज़ बीन, अगर आप उसको देखोगे तो कहीं ना कहीं जब वो शुरू में था तो इट वाज सिंपल, अभी तो और कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन जो थ्योरी है या फिर फिलोसॉफी किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाए उसको देखोगे तो कहीं ना कहीं आप जब भी 400, 500, 1000, 2000 साल पहले जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा जो रिटन डॉक्यूमेंट है दैट वाज अ सिंपल वन, कि किस तरीके से रेगुलेट करना है, भाई राजा का ये रोल होता है, ये आपको करना है, ये नहीं करना है, ऐसा सिंपल लिखा होगा। लेकिन धीरे धीरे और कॉम्प्लेक्सिटी होती गई, जैसे जैसे कहीं ना कहीं सोसाइटी आगे बढ़ते गई, जैसे जैसे सिचुएशंस उनके सामने अराइज होती गई। तो आज आपको जो ये रिटन डॉक्यूमेंट देखने को मिल रहा है दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या कर रहा है, ये आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे जो ये अथॉरिटी आ रही थी पर्सन के हाथ में कि ये कुछ भी कर सकता है, ए को भी कंट्रोल कर सकता है, बी को भी कंट्रोल कर सकता है। और सेम आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये मोनार्की में देखने को मिल रहा था कि मोनार्की में एक मार के दूसरे को दूसरे की जगह पे बैठ जा रहा है, दूसरे की गद्दी पे बैठ जा रहा है। सेम पैटर्न अगर आप देखोगे तो इससे क्या हो रहा है, इन सबसे अब्यूज़ ऑफ पावर हो रहा है। अब ये अब्यूज़ ऑफ पावर को रेगुलेट करने के लिए ही आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन को लाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन आपकी जो पावर है उसको लिमिट करता है, लिमिट द पावर गिवन टू द रूलर। इसके साथ में क्या करता है, ये एक आपके राइट्स के बारे में मेंशन करता है कि जो सिटीजन है उनको किस तरीके के राइट्स मिलेंगे। और इसके साथ में ये आपको लिमिटेशंस ऑफ गवर्नमेंट भी बताता है कि गवर्नमेंट कितने हद तक जा सकती है, उसकी ड्यूटीज़, उसके जो राइट्स है, उसकी जो अथॉरिटी है वो कितने लिमिट तक के है, कितने सब्जेक्ट्स तक के हैं, कौन से सब्जेक्ट में उसको रूल करने का अधिकार है, राइट है, और किस में नहीं है। तो ये आपको बेसिक डोमेन देखने को मिल रहा है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया टू लिमिट द पावर, टू लिमिट द अनआर्बिट्ररी रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और यू कैन से जुडिशरी। मेन आप देखोगे जो रूलर होता है उसकी पावर को लिमिटेशन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया। ठीक है, ऑल्दो थोड़ा सा लंबी स्टोरी हो गई, बट आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे जितनी भी गड़बड़ हो रही है उसको सबको कम करने के लिए, उस सबको रिमूव करने के लिए आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। नाउ स्टार्टिंग विद द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक बार देख लेते हैं टेक्स्ट में किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व्ड, नॉट बोर्न ओवरनाइट बट क्राफ्टेड थ्रू 200 ईयर्स ऑफ कॉलोनियल एक्सपीरियंस एंड इंडियन स्ट्रगल फॉर सेल्फ रूल। अगर आप बात करोगे कॉन्स्टिट्यूशन को तो आपको लगेगा कि जो 1947 में बना है या 46 से जो 47 तक बन रहा था, 50 तक आप देखोगे 50 में इम्प्लीमेंट हुआ, 49 तक बन रहा था। तो ये जो आपको डॉक्यूमेंट है, इट इज़ नॉट अ डॉक्यूमेंट दैट हैज़ बीन जस्ट रिटन इन अ 2 ईयर्स एंड 11 मंथ, बल्कि ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जो 200 ईयर्स की आपकी हिस्ट्री को, 200 ईयर्स के आपके एक्सपीरियंस को और आपका जो स्ट्रगल हुआ है सेल्फ रूल के लिए उस सबको ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसके बाद में बिफोर स्टार्टिंग हम देखते हैं कि ब्रिटिश के समय पे किस तरीके से होता था। हिस्ट्री अगर आपको समझनी है तो आपको ये 200 ईयर्स ऑफ कॉलोनियल एक्सपीरियंस तो हमें समझना पड़ेगा। अब 200 साल का जो एक्सपीरियंस है ये आपको, उस समय तो ब्रिटिश रूल कर रहे थे, तो हमें ब्रिटिश किस तरीके से यहाँ पे रूल कर रहे थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से था और किस तरीके से दे हैड प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन द ब्रिंगिंग एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर बात करें ब्रिटिश के समय पे ब्रिटिश रूल एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल इवोल्यूशन किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, आपको पहले बता चुका हूँ मैं कि पहले जो था सबसे पहले आता है तो वो थोड़ा सा सिंपल रहता है,
फिर धीरे 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 इट बिकम कॉम्प्लेक्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस और अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड एस्पिरेशंस, डायनामिक इंटरनेशनल रिलेशन, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सोसाइटी के अंदर वेरिएशन आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें मिलके इसको क्या करती है, धीरे 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 कॉम्प्लेक्स बनाते जाती है और वो भी अपने आप इवॉल्व होते जाता है। इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन आपको ब्रिटिश के समय पे भी इवॉल्व होते हुए आपको मिलेगा, मतलब मिलता है। अर्ली रेगुलेशंस की बात करें, स्टेप 1 देखो, अर्ली रेगुलेशन कौन कौन से आए थे, 1773 में आपको देखने को मिल जाएगा, एंड देन 1853 के अंदर। 1773 से लेके 1858 तक के आप देखोगे शुरुआत के रेगुलेशंस आ रहे हैं। अब रेगुलेशंस में भी क्या है, रेगुलेशंस आर व्हाट, रेगुलेशंस रेगुलेट करने को आपको एक डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाएगा जिस पे आप कुछ ना कुछ लिखा है। एक तरीके से आप कह लीजिए जैसे आपने कुछ एक लेटर लिख दिया, आपने कुछ एक ऑथोराइज पेपर पे आपने बता दिया कि आप इस तरीके से रूल करना है, इस तरीके से आपको गवर्न करना है, इस तरीके से आपकी पावर है, इस तरीके के आपके राइट्स है। तो ये जो पेपर के ऊपर, डॉक्यूमेंट के ऊपर ये जितना भी आपको देखने को मिल रहा है और इसके बाद में जो साइन हो जाती है, तो ये क्या है, एक तरीके से रेगुलेशन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो ब्रिटिश के समय पे आपको वो अलग अलग रेगुलेशंस लेके आए थे। अब रेगुलेशंस क्या करता है, रेगुलेट करता है। किसको रेगुलेट कर रहा है, तो उस समय कौन थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे एज अ ट्रेडिंग कंपनी थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को एक पॉलिटिकल यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, वो आई थी ट्रेडिंग करने, फिर बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर 1757 एंड 1764, ये आपको ईयर पता होना चाहिए। अब ये बताइए 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के अंदर कौन कौन से रूलर कौन था उस समय, बंगाल का, और एट द सेम टाइम बक्सर के समय पे बंगाल का रूलर कौन था और कौन कौन से उस समय किंग थे, रूलर थे जिसके साथ में ब्रिटिश का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर एज वेल एज बैटल ऑफ प्लासी, दोनों के बारे में आपको बताना है। अब धीरे धीरे जो ट्रेडिंग कंपनी आई थी उन्होंने अपने आप को दी, ट्रेडिंग से करते करते पैसा आते आते वो अपने आप को रेवेन्यू राइट्स मिल गए उन्हें धीरे धीरे। फिर उसके बाद में वो पॉलिटिकल कंट्रोल भी करने लगी। पॉलिटिकल कंट्रोल करने लगी मतलब राजा जो रूल करते थे, राजा को भी रिप्लेस उन्होंने बहुत जगहों पे कर दिया और कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल एंटिटी बन गई। पॉलिटिकल एंटिटी जो पॉलिटी को कवर कर रहा है, पूरे देश को चला रहा है या फिर पूरे स्टेट को चला रहा है। तो एवरीथिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमी, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी, आर्ट, आर्किटेक्चर, जो आप सोच सकते हो वो सब किसके कंट्रोल में आ गया था, वो सब चीज़ें किसके कंट्रोल में आ गई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ गई तो आपको पता होना चाहिए इसके ऊपर कोई उस समय कंट्रोल तो था, लेकिन फिर भी एक लिमिटेशन। आप देखो कंपनी है, कंपनी आज के समय पे आप देख सकते हो बहुत सारी कंपनी है, वी हैव रिलायंस, अडानी, अंबानी, ये हो गया जॉय, फिर इसके साथ में पतंजलि, इमामी, देयर आर मैनी कंपनीज एज वेल फॉर एग्जांपल, और भी बहुत सारी आप जो भी सोच सकते हो। अब ये जितनी भी कंपनी है ये धीरे धीरे मान लो अभी तो सिर्फ पैसा कमा रही है, लेकिन एक समय पे पीएम को रिप्लेस कर दे, सीएम को रिप्लेस कर दे, तो आप सोचो कितनी बड़ी अथॉरिटी, कितनी बड़ी पावर उसके बाद में आ जाएगी। अब ये आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट दैट इज पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो देखो पावर करप्ट, पावर आ गया, धीरे धीरे थोड़ा बहुत करप्शन भी आपको देखने को मिला है। अगर आप मेरे हिस्ट्री की क्लासेस देखोगे पुरानी, तो हमने उस समय देखा था कि रॉबर्ट क्लाइव किस तरीके से यहाँ से करप्शन करके, और बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे आफ्टर 1757 से 1760 तक के रॉबर्ट क्लाइव रहता है, तो किस तरीके से बहुत ज़्यादा यहाँ से पैसा और ये सब चीज़ें लेके जाता है। नॉनदलेस पावर करप्ट्स। अब जब आ रहा है एब्सोल्यूट पावर, अब देखो यहाँ पे तो पॉलिटिकल यूनिट सब कुछ इनके अंडर पे आ गया, तो ये एब्सोल्यूट पावर इनके पास में आपको देखने को मिल रही है, और एब्सोल्यूट पावर मीन्स एब्सोल्यूट करप्शन। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे एब्सोल्यूट करप्शन हो गया। तो अब जब करप्शन कर रहे हैं तो इसको कोई ना कोई तो रेगुलेट करना पड़ेगा।
तो रेगुलेट करने के लिए जो जितने भी आप देखोगे ये एक्ट लेके आए, ये जितने भी डॉक्यूमेंट लेके आए, इसको क्या बोला गया उन्होंने बोला रेगुलेटिंग एक्ट। और जिस ईयर में आए थे दैट इज़ नोन एज रेगुलेटिंग एक्ट का ईयर, दैट इज़ यहाँ पे 1773। अब देखो ईआईसी की पावर बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो ईआईसी कहाँ से आए? ईआईसी आए ब्रिटेन से। उस समय ब्रिटेन में सबसे सुप्रीम कौन था? ब्रिटेन में सबसे सुप्रीम आप देखोगे रूलर, वहाँ का जो राजा था, किंग था वहाँ का, किंग क्वीन जो भी थे। अब ब्रिटेन के अंदर किंग रूलर है वहाँ पे, वो देख रहे हैं कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी के तौर पे जैसे लाइसेंस दिया था, वो कंपनी बाहर जाके अपने आप को एज अ पॉलिटिकल यूनिट करके वो बहुत सारा पैसा कमा रही है, करप्शन कर रही है और भी बहुत सारी चीज़ें कर रही है। तो भाई कंपनी का रोल क्या है? कंपनी का रोल है टू डू इकोनॉमिक्स, बट व्हाट आर दे डूइंग? बिजनेस तो कर नहीं रहे, बाकी दूसरी चीज़ें पॉलिटिकल कंट्रोल भी करने की ये कोशिश करने लगे। बिजनेस तो चल ही रहा था बट एट द सेम टाइम पॉलिटिकल कंट्रोल भी ये करने लगे थे। तो इन्होंने सोचा कि भाई कहीं ना कहीं इसको रेगुलेट करना पड़ेगा। तो ब्रिटेन ने क्या किया? ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट था, दे हैव ब्रॉट इन एन एक्ट, इसको बोला गया रेगुलेटिंग एक्ट। यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ है? बहुत सारी चीज़ें हैं, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उस समय डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे अब जस्ट एक बार ओवरऑल पर्सपेक्टिव ले लेते हैं। यहाँ आप देखोगे फर्स्ट अटेम्प्ट टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ देखोगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाता है, इसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता बनाता है ये। एट द सेम टाइम इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट बिगिनिंग ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ये आप देखोगे ये सब रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें आपको अभी इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, वी विल ऑल कवर ऑल दोज थिंग इन हिस्ट्री। लेकिन आप देखोगे कि रेगुलेटिंग एक्ट से क्या हो रहा है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बनते हुए मिल रहा है, और इससे क्या हो रहा है? रेगुलेट कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए तो उसकी कोई रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी, कहीं ना कहीं वो एक ही वॉज रिस्पॉन्सिबल, ही वॉज अकाउंटेबल फॉर हिज एक्शन, या फिर उसके सबॉर्डिनेट्स के एक्शन, तो उसको कहीं ना कहीं रेगुलेट किया जा सकता है। तो इस तरीके से एक पर्सन को यहाँ पे बनाने की बात हुई। सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशल केसेस रहते थे उसको देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, क्योंकि भाई अब आप करप्शन करोगे तो आप ऐसा थोड़ी है बच के जा सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, जो भी गड़बड़ हो रही है, उसको रेगुलेट करेगा। यहाँ पे जो भी लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट में बात हो रही है उसको देखने के लिए, क्योंकि पॉलिटिकल यूनिट है, पॉलिटिकल यूनिट में एवरीथिंग हैज़ बीन कवर्ड फ्रॉम द सोसाइटी टू द लॉ एंड ऑर्डर एज वेल। तो लॉ एंड ऑर्डर के बाद में अगर कुछ गड़बड़ हो रही है, इफ़ देयर इज़ सम डिस्प्यूट, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है ऑफकोर्स। और इसके अलावा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इन्होंने क्या करा? गवर्नर जनरल के हाथ में एक सेंट्रलाइज पावर दे दी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर। इसके बाद में जब धीरे धीरे टाइम बीता, आफ्टर 1 2 3 4 5 6 7 8, उन्हें समझ में आया कि यार इसमें थोड़ी सी और गड़बड़ हो रही है। ठीक है, तो जैसे जैसे उनको समझ में आया उन्होंने क्या करा? उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करी। अब मॉडिफाई करते करते यहाँ पे आप देखोगे नेक्स्ट टाइम लेके आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, और ये आता है 1794 के अंदर। अब इसके अंदर क्या बात करी है? इंडिया के बारे में एक्ट है, इसके बारे में वो इसमें बताते हैं कि जो कंपनी है, कंपनी तो रूल कर ही रही है, कंपनी का कंट्रोल तो है ही, कंपनी से एकदम से कंट्रोल तो लिया नहीं इन्होंने। ये सब ग्रेजुअल प्रोसेस होती है, आपको बताया मैंने कि डुअल कंट्रोल रहेगा। कंपनी का तो कंट्रोल रहेगा ही, एट द सेम टाइम ब्रिटिश का भी कंट्रोल रहेगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठी है वो भी कहीं ना कहीं उसका भी कंट्रोल आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है। कंपनी रूल्ड बट ब्रिटेन वॉच। देख रहे भाई, आपको ऐसा नहीं है कि आपके पास में अंधाधुन अधिकार है, यू हैव एब्सोल्यूट पावर। एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। तो हम क्या कर रहे हैं? आपको देख रहे हैं। हु विल ओवरलुक, हु विल सी द कंपनी, हु विल वॉच द कंपनी? तो भाई हम हैं बैठे हुए आपके भी ऊपर। ब्रिटेन के पार्लियामेंट, ब्रिटेन की गवर्नमेंट इज़ देयर टू सी द एक्टिविटीज़ ऑफ कंपनी। ये आपको पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम इसको अच्छे से करेंगे डिटेल में तो इट विल रिक्वायर अ लॉट अमाउंट ऑफ टाइम, लेकिन हम इसे हिस्ट्री वाले पार्ट में देख लेंगे। नंदलेस आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में और समय बीतता है धीरे धीरे आप देखोगे आफ्टर 20 ईयर्स चार्टर एक्ट आते हैं। जो ये एक्ट है इसको वो नाम देते हैं चार्टर एक्ट।
1813 के अंदर आप देखोगे 1333, फिर उसके बाद में 1853 आप देखोगे चार्टर एक्ट कंटिन्यू ऐसे आते जाते हैं। चार्टर मीन्स जो कंपनी है, कंपनी का किस तरीके से चार्टर होना चाहिए, किस तरीके से उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए। तो कंपनी को मेनली गवर्न करने के लिए ये सब एक्ट आए थे। कंपनीज़ की जो मोनोपोली है, कंपनीज़ का जो रूल है उसको गवर्न करने के लिए, देयरफॉर इट इज़ नोन एज चार्टर एक्ट। अब चार्टर एक्ट के अंदर क्या हो रहा है, ट्रेड की जो मोनोपोली है वो यहाँ पे एंड कर देते हैं। वो धीरे धीरे 1853 तक आते आते कि भाई जो आपके पास में सुप्रीम अथॉरिटी थी ट्रेड करने की, वो ट्रेड की मोनोपोली आपने जो पूरी अपने पॉलिटिकल यूनिट के कारण उन्होंने सब कुछ पावर सेंट्रल में कर ली थी, और सिर्फ एक ही कंपनी थी जो वहाँ से ट्रेड का पूरा बेनिफिट उठा रही थी। ट्रेड की जो मोनोपोली है वो यहाँ पे एंड हो गई। सिविल सर्विसेज ओपन टू इंडियन। अब इन्होंने क्या था, पॉलिटिकल यूनिट थी तो सब अपने अपने वाले जो उनके ब्रिटिशर्स थे उनको एक सिग्निफिकेंट पोजीशन IAS IPS वाली पोजीशन पे वो बैठाते थे। सिविल सर्विसेज मेनली कॉन्सेंट्रेटेड टू यूरोपियन और ब्रिटिशर्स। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ पे इंडियन को भी लाने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। इसके साथ में सीट्स ऑफ सिविल सर्विसेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आगे बढ़े, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसके बाद में आता है 1857 का रिवोल्ट। सभी को पता है 1857 का रिवोल्ट में क्या हुआ था। अब एकदम से जब रिवोल्ट हो जाता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी आप देखोगे कि दे गॉट अमेज, एट द सेम टाइम दे गॉट शॉक्ड कि एकदम से इतना रैंडम इतना बड़ा रिवोल्ट कैसे हो गया। मतलब उनके हिसाब से तो वो रैंडम ही इवेंट था। रैंडम इवेंट क्यों था, क्योंकि उन्हें तो इतना कुछ इंडिया के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, और एकदम से रिवोल्ट हो जा रहा है, एकदम से रिवोल्ट हो जा रहा है। तो समझ में आ गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पे करना शुरू कर दी है, या फिर एक्सप्लॉयटेशन की आप समझ लो कि एक जेनिथ पहुँच चुका है, एक पीक इन्होंने कवर कर लिए। अब ये जो जेनिथ है, ये जो पीक है, इसको कहीं ना कहीं हमें रेगुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो था, जो आप देखते हो कि जो डुअल कंट्रोल था कंपनी का और ब्रिटिश गवर्नमेंट का, तो यहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, कंपनी को हटा ही दिया कि कंपनी आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है, पॉलिटिकल डोमेन में आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ट्रेड करना है तो कर सकते हो, हालांकि उसमें भी आपकी मोनोपोली अब बची नहीं है। बट इफ़ यू वांट, यू आर अ ट्रेडिंग कंपनी है तो करो, बट पॉलिटिकल यूनिट जो रहेगी, पॉलिटिकल जितना भी डोमेन हो रहा है, दैट वुड बी अंडर द क्राउन। क्राउन मीन्स आप समझ लीजिए जो किंग है ब्रिटेन का, उनके अंडर पे ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, अब यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने बोल दिया कि हम इंडिया के लिए गवर्नमेंट बनाएंगे जो इंडिया को गवर्न करेगा। इंडिया, आपको पता है इंडिया दैट इज़ भारत, तो इंडिया को गवर्न करने के लिए उन्होंने गवर्नमेंट बना दी। अब गवर्नमेंट बना दी तो गवर्नमेंट का फॉर्मेट क्या रहेगा, वो सब चीज़ें क्या रहेगी, वो दैट हैज़ ऑल बीन मेंशन्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। एक्ट मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है, ऐसा डॉक्यूमेंट है जैसे PDF है 40-50 59 पेज की, वैसे उन्होंने डॉक्यूमेंट टाइप करके बना दिया और उसे उसके अंदर बता दिया कि किस तरीके से वर्क करेंगे, किस तरीके से क्या होगा, एंड उसको क्या बोला गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, क्योंकि वो इंडिया के गवर्नमेंट के बारे में बता रहा है, उनके पावर के बारे में बता रहा है, उनके और भी अलग अलग राइट्स के बारे में बता रहा है। तो अब क्या हो गया, पावर शिफ्ट हो गया कहाँ से, कंपनी से क्राउन। कंपनी जो अपने आपको सर्वे सर्वा मान रहा था, एब्सोल्यूट पावर की बात कर रहा था, अब वो एब्सोल्यूट पावर कंपनी से ख़त्म हो गया। कंपनी से पावर वो कहाँ आ गया, क्राउन के पास में। फ्रॉम ट्रेडर टू रूलर, पहले ट्रेडर थे कौन, कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर धीरे धीरे रूलर बने। द ब्रिटिश केप्ट पासिंग लॉज टू टाइटन कंट्रोल, ब्रिटिश क्या कर रहे थे, धीरे धीरे उनके ऊपर रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। बट ईच लॉ सोड अ सीड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल। अब यही सब आप लॉ देखने को आपको जो मिल रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, कहीं ना कहीं यहीं से आप देखोगे जो आज के समय पे लेजिस्लेचर, आज के समय पे एग्जीक्यूटिव, आज के समय पे जो जुडिशरी है, वो आपको यहीं से डिराइव होती हुई मिले। फॉर एग्जांपल 1773 से हमें क्या देखने को मिला था, सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। ये सुप्रीम कोर्ट धीरे धीरे कंटिन्यू रहता है, यही आज के समय पे भी कंटिन्यू है, बट जो सीट है इट इज़ शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आप देखोगे द सेम सुप्रीम कोर्ट, द सेम प्रोसेस, द सेम तरीके का मैनर आपको यहाँ पे आज भी कंटिन्यू देखने को मिल रहा है इन द प्रेजेंट टाइम एज वेल। द ब्रिटिश के पासिंग लॉज टू टाइटन कंट्रोल को कोशिश कर रहे थे ब्रिटिश, बट ईच लॉ सोड अ सीड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और यही वाला आप देखोगे धीरे धीरे आगे चल के यही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में अपने प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा आप देखोगे
इसके बाद भी आप देखोगे आफ्टर 1860s यहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन अलग अलग जो है किस तरीके से इंडिया का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बढ़ रहा है और किस तरीके से और भी वेरियस तरीके के आप एलिमेंट देखते जाओगे, कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बढ़ते जा रही है। ठीक है, पहले बस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात आई। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर पहले मान लीजिए 10 लोग थे, तो अब 10 से 20 हो रहे हैं, 20 से 30 हो रहे हैं, 30 से 40 हो रहे हैं। वो 40 हो रहे हैं तो 40 में किसको कितने सीट्स मिलेगी, कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है, ये अब धीरे 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 आप देखोगे यहाँ से 1861 से 1919 तक के आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है। इंडियन काउंसिल एक्ट, काउंसिल आपको पता है, अभी मैंने जब शुरुआत में बताया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो पूरे इंडिया को गवर्न करते हैं आज के समय पे, उसके अंदर हमने देखा था 15% ऑफ लोकसभा। तो वैसा ही उसके समय पे भी देयर वाज अ काउंसिल। काउंसिल मतलब कुछ नहीं, ग्रुप है, ग्रुप एक कुछ लोगों का, चुनिंदा लोगों का ग्रुप, दैट इज नोन एज काउंसिल। वो कुछ लोग क्या करते हैं, जैसा अपन मान लीजिए आप सब साथ में, हम सब साथ में रूम में बैठे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, टेबल के अराउंड बैठे 10 लोग 20 लोग। अब 20 लोग बैठे हुए तो वो एक 20 लोगों की जो मीटिंग हो रही है, वैसी ही मीटिंग बड़े लेवल पे जब होने लगी और वहीं से जो है पूरे इंडिया की कमांड, इंडिया की किस तरीके से रूल करना है, किस तरीके से रेगुलेट करना है, वो सब आने लगा। तो वो जो आप देखोगे मीटिंग, वो जो आप देखोगे जो मीटिंग में पर्सन बैठे हैं, दे वेर द रूलर, एक्चुअल रूलर वहाँ से आपको देखने को मिलेगा, वहाँ से एक्चुअल पॉलिसीज़ बनते हुए मिलेगी। तो ये वाले उन्हीं को बोलते थे काउंसिल। काउंसिल के अंदर और बात करें तो दे, व्हाट इज़ द रोल ऑफ काउंसिल, टू लेजिस्लेट। लेजिस्लेट मीन्स कानून बनाना, कानून बनाना। जो कानून बनाता है, आप देखते हो कि जो 59 पेजेस की हमने ये पीडीएफ देखी है, वैसे ही उस ज़माने में भी पीडीएफ तो नहीं, मतलब उस ज़माने में भी डॉक्यूमेंट होते थे। तो डॉक्यूमेंट कौन बना रहा है, किस तरीके से काम होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो सब आपको जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जो लॉ एक्ट बनाते हैं, दे आर कंसिस्ट दे आर लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें फिर यहाँ पे आप देखोगे विथ इंडियन नॉमिनल पार्टिसिपेशन। 1861 में इंडियन को भी उन्होंने यहाँ पे बोला कि इंडियन भी होना चाहिए विथ इंडियन नॉमिनल, ऑल्दो नॉमिनल मीन्स वेरी लिमिटेड आपको यहाँ पे नंबर देखने को मिलेगा ऑफ इंडियन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब नियम बना रहे हैं, इंडिया को किस तरीके से रूल करेंगे, किस तरीके से पॉलिसीज बनेगी, वो सब यहाँ पे बना रहे हैं। लेकिन बनाने में इंडिया को लेजिस्लेशन करना है, लेकिन वहाँ पे इंडियन की ही कमी बहुत आपको लिमिटेड देखने को मिलेगी। भाई बाहर वाला आके उसको क्या पता किस तरीके से यहाँ पे हिस्ट्री हमारी रही है, किस तरीके से ज्योग्राफी के अंदर वेरिएशन रहा है, जो यहाँ का लोग है उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो आप देखोगे लेजिस्लेटिव काउंसिल विथ इंडियन, ऑल्दो इंडियन वेयर इन नॉमिनल नंबर्स। इसके बाद में 1892 में आता है इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडियन को लेने के लिए और इसके साथ में जो भी यहाँ पे इलेक्ट हो रहा है काउंसिल के अंदर, उसके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन होने लगे। इनडायरेक्ट इलेक्शन मीन्स जो उस ज़माने में रूलर होते थे, राजा होते थे, किंग होते थे, या फिर जो अच्छी पोजीशन पे बैठे, दे हैव द राइट टू चूज़ फ्रॉम देयर ओन, और वो अपने हिसाब से चूज़ करके भेजते थे कि भाई तुम जाओ और इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट करो, कानून बनाने के अंदर, लेजिस्लेचर के अंदर आप कंट्रीब्यूट करो और लेट यू बिकम द पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये क्या हो गया, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इसके बाद में आप देखोगे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। अब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आप देखोगे दीज आर 2 पर्सन, मॉर्ले और मिंटो। मॉर्ले कौन है, मिंटो कौन है, आपको पहले बताओ। मॉर्ले मीन्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और मिंटो क्या हो गया यहाँ का जो आप देखोगे वॉयस रॉय। तो इस तरीके से मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड में भी आपको सेम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप एक बार देखना इनके बारे में, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए मॉर्ले मिंटो के बारे में एंड मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड के बारे में। ठीक है, जिसको बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन पता है एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। लेट अस लुक एट द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। 1909 में आया तो वही उसका नाम आपको रिफॉर्म क्या है, कुछ भी नहीं, वापस से ये डॉक्यूमेंट आ गया, मॉर्ले मिंटो ने साइन कर दी, उनके नौकरों ने बनाया होगा, उन्होंने साइन कर दी, साइन पे बता दिया कि किस तरीके से क्या होगा, किस तरीके से रेगुलेट करेंगे, किस तरीके से लेजिस्लेटिव काउंसिल में सीट्स बढ़ेगी, किस तरीके से एग्जीक्यूशन होगा, वो सब यहाँ पे इन्होंने रिफॉर्म के अंदर बता दिया। थोड़ा सा रिफॉर्म लाए, मॉडिफिकेशन लाए, इसके लिए इसका नाम पड़ गया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। 1909 में आया, इसके लिए 1909। इसमें ये बोलते हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एक लिमिटेड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम।
ये बोलते हैं कि मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टरेट। इलेक्टरेट मतलब मुस्लिम जो पर्सन है जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएगा, उसको अगर आपको चूज़ करना है तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहे थे, मतलब उसको चूज़ करने वाले भी मुस्लिम हो गए। समझ में आ रहा हो? सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, मुस्लिम को चूज़ करने वाले भी मुस्लिम हो गए। तो इस तरीके से ये एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, और ये कॉन्सेप्ट आप देखोगे धीरे 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 कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करता है इन द पार्टीशन ऑफ इंडिया। भाई कहीं ना कहीं ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम को ही वोट दे सकते हैं, या फिर मुस्लिम के जो आप देखोगे वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको वोट सिर्फ मुस्लिम ही दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो अगेंस्ट दैट बेसिक प्रिंसिपल हो रहा है। ये सिस्टम में पॉपुलेशन तो सब है, बहुत सारे अलग अलग रिलीजन के यहाँ पे मेंबर है, बट ओनली यू आर गिविंग द अथॉरिटी टू मुस्लिम पर्सन टू सिलेक्ट या फिर टू इलेक्ट अ मुस्लिम। तो ये थोड़ा सा क्या होता है, ये एक गलत कॉन्सेप्ट वो इंट्रोड्यूस करते हैं, और उसका रेमिफिकेशन आपको कहीं ना कहीं पार्टीशन के रूप में, पार्टीशन के ऊपर इन्फ्लुएंस उसका देखने को मिलता है। ठीक है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू से कि कहीं ना कहीं इसी यही मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, बट ऐसा नहीं है, लेकिन इट हैज़ प्लेड अ क्रिटिकल रोल कि वो हिंदू मुस्लिम वाला जो एलिमेंट है उसको यहाँ पे फ्रंट सीट पे लेके आए। मॉरले मिंटो रिफॉर्म, देन उसके बाद आ रहा है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1990। अगेन सेम पैटर्न, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वो नई चीज़ लेके आते हैं। वो बोलते हैं कि प्रोविंसेस के अंदर डायरकी, डायरकी मीन्स आप बताइए डायरकी मीन्स। बहुत अच्छा, ये तो डायरकी हर बार क्वेश्चन आता है यूपीएससी की मेन प्रीलिम्स के अंदर, हर दूसरे तीसरे साल डायरकी पर क्वेश्चन आता है कि कौन से एक्ट में आया था 1990 के अंदर। चलो बताओ डायरकी में कितने आप देखोगे सब्जेक्ट्स थे, वो सब चलो अभी बात नहीं करेंगे। हल दो, डायरकी का मतलब ये हो रहा है 2। ये आप बताना व्हाट आर द सब्जेक्ट्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डायरकी इन प्रोविंसेस। प्रोविंस आपको पता होना चाहिए, प्रोविंसेस क्या हो रही है। एंड इसके बाद है सेंट्रल बाइकैमरल लेजिस्लेचर। अभी आप ऊपर देख रहे हो, ये आपने लेजिस्लेटिव काउंसिल देखी थी, यही आगे चल के लेजिस्लेचर बन जाता है। अब ये लेजिस्लेचर के अंदर क्या हो रहा है, लेजिस्लेचर मतलब ऐसी जगह, ऐसे द पर्सन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द लॉज। अब ये जो है मेकिंग द लॉज के लिए आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेजिस्लेचर मतलब वहाँ पे लोग बैठ रहे हैं, हाउस हो गया जहाँ पे लॉ बन रहा है, दैट इज़ लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर जो है इसको इन्होंने क्या बता दिया, बायकैमरल। बायकैमरल मतलब 2 हाउस बना दिए, एक यहाँ पे भी बैठो, एक यहाँ पे बैठो, ए और बी। यहाँ पे भी कानून बनेगा, यहाँ पे भी कानून बनेगा। इस तरीके से उन्होंने सेंट्रल के अंदर 2 बायकैमरल लेजिस्लेचर बना दिए। और अगर आप उसको आज के समय पे भी देखते हो तो कहीं ना कहीं आप उसको समझ सकते हो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। और आप देख रहे हो किस तरीके से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चल रहा है, किस तरीके से बायकैमरल जो उस जमाने में हुआ करता था, आज वो राज्यसभा और लोकसभा के रूप में आपको सामने देखने को मिल रहा है। दिस वॉज द बर्थ ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन लिमिटेड बस सिम्बॉलिक। हालांकि उस समय पे इतना पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं हुआ, बट कहीं ना कहीं ये सिम्बॉलिक तो था ही, और इससे कहीं ना कहीं आगे चल के हमें एक मोटिवेशन मिला है आगे बढ़ने के लिए। इसके बाद में आती है स्टेप्स टुवर्ड्स सेल्फ गवर्नमेंट। 19 हमने 19 तक के देख लिया। 19 के बाद में आता है 1935 में एक्ट। 1930, 31, 32 में होती है गोलमेज सम्मेलन, उसको बोलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अब क्या है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी क्या होता था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ऐसे राउंड टेबल लगाए रहते थे, वो टेबल के आजू बाजू लोग बैठते थे, उस पर मीटिंग होती थी। मीटिंग होके क्या निकलता था, मीटिंग होके वही निकलता था, मीटिंग होके एक डॉक्यूमेंट निकलता था। वो डॉक्यूमेंट में क्या लिखा रहता था, वही लिखा रहता था कि किस तरीके से रेगुलेट करना है, किस तरीके से नियम हो गए, किस तरीके से काउंसिल होगी, कौन कौन से मेंबर हो गए, कि कितने को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, कितने को कुछ बेनिफिट मिलेगा। ये सब वो क्या है बुक के अंदर लिखी है, या फिर वो पेजेस के अंदर लिखा है। वो पेजेस, वो डॉक्यूमेंट, दे आर द एक्ट। ये डॉक्यूमेंट क्या हो रहा है, एक्ट के रूप में यहाँ पे जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसके बाद में आया था, दैट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इंडिया की गवर्नमेंट किस तरीके से रहेगी उसको ये बताने वाला एक्ट है। 1935 के अंदर ये आया था आफ्टर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। यहाँ पे वो बताता है कि प्रिंस, देखो बहुत सारी चीज़ें डिटेल में आई है भाई, बहुत बड़ा एक्ट है ये, अगर आप देखोगे तो पढ़ते पढ़ते बहुत आपको समय लग जाएगा। ठीक है, लेकिन कोर कॉन्सेप्ट क्या था यहाँ पे, कोर कॉन्सेप्ट था
फेडरल प्लान, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, इंस्ट्रूमेंटल इन 1949 कॉन्स्टिट्यूशन। लेट अस सी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात कर रहा है, प्रोविंशियल, प्रोविंसेस, प्रोविंसेस बोले तो बताइए, लेट अस लुक एट, ये देखो सेंट्रल पे तो आप देखोगे सेंट्रल लेजिस्लेचर हो ही रहा है, इसके साथ में प्रोविंसेस आप देखोगे बहुत सारे, प्रोविंसेस मीन्स आज समझ लीजिए आज के समय के हिसाब से स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट थे जो जहाँ पे बहुत सारे स्टेट में आप देखोगे जो ट्रेडिशनल रूलर थे, किंग थे, इंडियन किंग वो रूल करते थे, और बहुत सारे आप ऐसे प्रोविंसेस देखोगे जहाँ पे, बहुत सारे ऐसे स्टेट देखोगे जहाँ पे किंग को ख़त्म करके, किंग को मार के कहीं ना कहीं वहाँ का जो किंग बन गया वो बन गए हैं ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने अपने अपनी अलग अलग पॉलिसी लगाई और वो अब आज के समय के वो यहाँ पे किंग बन चुके हैं, दे हैव द सुप्रीम अथॉरिटी। तो जो ऐसी एरिया है या ऐसे जो स्टेट है जो अंडर है ब्रिटिशर्स, दे आर कॉल्ड प्रोविंसेस, और जो किंग के अंदर आ रहे हैं दे आर कॉल्ड प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली मतलब जो राजाओं के पास में, दे आर प्रिंसली स्टेट। ये ब्रिटिश के ब्रिटिश प्रोविंसेस, आपको ये प्रोविंसेस जो है वो ब्रिटिश के पास में जो है, जो कंट्रोल कर रही है ब्रिटिश, दे आर कॉल्ड ब्रिटिश प्रोविंसेस। तो ये जो प्रोविंशियल है, प्रोविंशियल के अंदर ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मतलब ये जो प्रोविंसेस है कहीं ना कहीं वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। ऑटोनॉमी का मतलब तो समझता ही होगा। फेडरल प्लान, फेडरल के अंदर हो रहा है संघीय, संघीय प्लान के अंदर क्या हो रहा है कि भाई प्रोविंसेस हैज़ देयर ओन राइट, उसके साथ में सेंटर हैज़ देयर ओन राइट, हैज़ देयर ओन डोमेन टू क्रिएट लॉ, प्रोविंसेस हैज़ देयर ओन डिमेंड, देयर ओन एबिलिटी टू क्रिएट लॉ। ये इस तरीके से क्या हो गया फेडरल प्लान। फेडरल प्लान में होता है संघीय, फेडरल को बोलते हैं संघीय। संघ बोले तो ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे, या फिर ऐसा सिस्टम जहाँ पे गवर्नमेंट हैज़ बिन, पावर हैज़ बिन डिवाइडेड बिटवीन टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट। वो हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे, और हो गया प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल या फिर हाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में दे आर इंस्ट्रूमेंटल इन 1949 का कॉन्स्टिट्यूशन। अब 1949 का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यही जो कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ोगे, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये 1949 में बन के तैयार हो गया था। तो इसको बनाने के लिए कहीं ना कहीं बातें बोली गई होगी भाई, बातें कोई एक्ट में बताया होगा, कोई डॉक्यूमेंट में बताया होगा कि ये काम करते हैं अपन, एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जहाँ पे हम सब चीज़ें लिख देंगे। ये एक्ट लेके आया मैं, जैसे मैं एक PDF कुछ लिख के लाया 2 पेज में, वो 2 पेज को मैंने बोल दिया एक्ट, माइंड्स ऑफ UPSC एक्ट। अब यहाँ पे मैंने बता दिया कि किस तरीके से मैं ये इसमें बताया कि किस तरीके से मैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाऊंगा एक, और मैं मेरे अपने चैनल को रन करूँगा, या फिर मैं मेरे स्टेट को रन करूँगा, मैं मेरे एरिया को रन करूँगा, या फिर घर को रन करूँगा। तो यहाँ पे क्या है, फिर अब मैं हम यहाँ पे एक मुझे बस एक लाइन में बोला गया है कि यू हैव टू क्रिएट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर योर सेल्फ, फॉर योर होम। अब यहाँ पे मैं वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाऊँगा, तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाऊँगा कि मेरा घर कैसा होना चाहिए, मेरे घर में किस तरीके से होगा, किस तरीके से काम धंधा, ये सब बहुत सारी चीज़ें वो सब आ जाती है। तो ये हो गया मान लो 50 पेज का डॉक्यूमेंट, और ये डॉक्यूमेंट जो है मेरे घर को गवर्न करेगा, मेरे घर को रेगुलेट करेगा, और इसे मैंने क्या बोल दिया, कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी में बोले तो संविधान। तो वैसा ही आप देखोगे कहीं ना कहीं 1935 वाला एक्ट बताता है कि आपको यू हैव टू क्रिएट अ कॉन्स्टिट्यूशन, आपको एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, और फिर वो यहाँ पे वो 1947 में स्टार्ट कर देते डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, 49 तक आते आते वो बन के आ जाता है। ठीक है, और फिर इसके बाद में आ जाता है, इसके अलावा भी आप देखोगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस में कि इंडिया आज़ाद हो चुका है। अब ये एक्ट, ये कहाँ से आया एक्ट, ये आया वहीं से, ब्रिटेन से आया। ब्रिटेन वालों ने भेज दिया कि जाओ आज से तुम आज़ाद, जाओ सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। मतलब जोक सपाट, मतलब यहाँ से क्या आ रहा है, एक डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट पे क्या लिखा हुआ है कि जो कंट्री है वो अब आपकी आज़ाद हो चुकी है, ब्रिटिश या फिर ब्रिटेन आर नो मोर द रूलर। तो ये यहाँ से पॉलिटिकल राइट्स अब किसके हाथ में है, वो आपके खुद के हाथ में है। ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंस एक्ट के अंदर वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है। वहीं पे बात होती है कि इंडिया एंड पाकिस्तान क्रिएटेड, और जो अभी तक क्या आप बोल रहे थे इंडिया इंडिया हिंदुस्तान, वो इंडिया का अब क्या हो चुका है, डिवीज़न हो चुका है, और पाकिस्तान वहाँ से एक नई कंट्री बना दी है। तो वो कहाँ से मिला है, वो यहाँ पे एक्ट से मिला है। अब देखो रिकॉग्निशन कहाँ से मिल रहा है,
एक एक्ट ने पूरा की पूरा सिस्टम को लीगलाइज कर दिया। एक छोटे से कागज़ के ऊपर या फिर एक बुक के ऊपर वो सब चीज़ें लिखी और इंडिया और पाकिस्तान अपने आप में सेपरेट हो गया। समझ में आ रहा है किस तरीके से डॉक्यूमेंट, ये जो लॉज है, ये जो एक्ट बन रहे हैं, इनका कितना पावर है। इसके बाद में ये एक्ट के अंदर बताया गया कि अब भाई ये सब दोनों आज़ाद हो चुके, दे हैव क्रिएटेड बोथ आर क्रिएटेड बाइफर्केशन हो गया है। तो अब दोनों के अंदर क्या चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ पे आपको फॉर्म होती हुई मिलती है अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है 1935 वाला एक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी फेडरल प्लान आपको देखने को मिल रहा है, यही आगे चल के इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसका ये ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है। ब्लूप्रिंट बोले तो रफ आइडिया, उसके ऊपर से आप देखोगे वही डोमेन को आगे बढ़ाते हुए बहुत सारे इसी को कंटिन्यू बहुत सारे डोमेन आपको आज भी कंटिन्यू देखने को मिलेंगे। द बेस्ट वन इज़ फेडरल प्लान। फेडरल सेंटर और स्टेट वाला जो प्लान है वो उस ज़माने में 1935 वाले लेके आया था, वो आज भी आपको जिंदा मिल रहा है, वो आज भी आपको कंटिन्यू मिल रहा है। फेडरल फीचर्स वही जो अभी आपको बताया। इसके अलावा गवर्नर का पावर, उस ज़माने में आपको पता है गवर्नर कितना ज़्यादा पावरफुल रोल रहता था, सेम आप गवर्नर का पावर आज भी वहाँ से इंस्पायर हमने किया है। पब्लिक सर्विस कमीशन, पीएससीज आप तैयारी कर रहे हो, बॉडी कौन क्रिएट करेगा एग्ज़ाम, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूपीएससी कहीं ना कहीं ये 35 से डिराइव हुआ है। एमरजेंसी प्रोविजंस, किस तरीके से एमरजेंसी के समय काम होना चाहिए, ये सब आप देखोगे 35 के एक्ट से डिराइव हुआ है। तो अभी तक तो हमने देख लिया कि किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर अलग अलग तरीके के एक्ट आए थे, अलग अलग तरीके के रिफॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया उनकी तरफ से। अब इसके अलावा आप देखते हो कि पार्ट बी में हम पढ़ेंगे देयर वेर डिमांड्स फ्रॉम द इंडियन साइड एज वेल। इंडिया में भी आप देखो कि बहुत सारे ऐसे रिफॉर्मर हुए हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्मर कह सकते हो आप, या फिर उस समय के जो लीडर्स थे, दे हैव डिमांडेड फॉर द आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप उस समय अगर बात करोगे तो सबसे जो सुप्रीम अथॉरिटी थी या फिर सुप्रीम बॉडी थी, दैट वाज द आईएनसी। आईएनसी फ्रॉम 1895 टू 1935 दे हैव मेड सेवरल डिमांड फॉर द सेल्फ रूल। सेल्फ रूल मीन्स स्वराज्य। तो खुद को राज्य करने के लिए उन्होंने इस तरीके की डिमांड रखी थी, और वो डिमांड कहीं ना कहीं उस समय तो ब्रिटिश थे, तो ब्रिटिश के सामने ये डिमांड रखी थी कि भाई हमें सेल्फ रूल होना चाहिए, इंडिया में खुद का स्व शासन होना चाहिए, खुद का शासन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई बाहर वाला आके इसको रूल कर रहा है। तो वो डिमांड आप देखोगे कौन कौन सी है। स्वराज बिल आपको 1895 में देखने को मिलेगा। फर्स्ट अनऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला बार कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग हुई है, ऑल्दो इट्स एन अनऑफिशियल वन, लेकिन यहाँ पे स्वराज बिल आपको देखने को मिल रहा है 1895 में। इसके बाद में अगर आप बात करोगे तो देखो नेहरू रिपोर्ट 1928 में, इसके बारे में तो सब अवेयर ही हो गए। ये नेहरू जो है, जवाहरलाल नेहरू नहीं, उनके फादर थे मोतीलाल नेहरू, उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी। उस समय इंडियन को बहुत ही नीचे वाली नज़र से देखा जाता था, बिलिटिल करके देखा जाता था बाय द ब्रिटिशर्स, कि यू डोंट हैव दैट अथॉरिटी, मतलब आपके पास में एबिलिटी ही नहीं है कि आप अपने खुद के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो। तो मोतीलाल नेहरू वॉज अ प्रोमिनेंट लीडर एट दैट टाइम, ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने बहुत सारी उनके अपने समझ से, उनके बहुत सारे अलग अलग चीज़ें पढ़ के, लॉ पढ़ के, कहीं ना कहीं ही हैज़ क्रिएटेड अ फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और वो प्रपोजल था बाय इंडियंस। किस तरीके से अलग अलग चीज़ों की डिमांड, किस तरीके से अलग अलग चीज़ें होने चाहिए, वो सब आपको नेहरू रिपोर्ट में देखने को मिल जाएगी। बहुत ही प्रोमिनेंट रिपोर्ट है, मेंस में, सॉरी प्री में तो हर बार आती ही है, हर बार नहीं मतलब रेगुलरली आपको इसके ऊपर से, इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। देन इसके बाद में आप देखोगे अगस्त ऑफर 1940 के अंदर एंड क्रिप्स मिशन, ब्रिटिश प्रोमिसेस फॉर डोमिनियन स्टेटस। तो ब्रिटिश इसके अंदर आपको डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करने की बात करते हैं, बट आपको पता है 1930 के अंदर लाहौर सेशन के अंदर पहले ही बोल दिया था कि डोमिनियन स्टेटस इज नो मोर द रियल गोल, द रियल गोल इज स्वराज्य। ठीक है, 1930 में आपको पता होगा लाहौर सेशन जो हुआ था, वहाँ पे स्वराज्य या फिर सेल्फ रूल वॉज द गोल, या फिर आप कह लीजिए इसको इंडिपेंडेंस।
एंड नॉट द डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस की बातें यहाँ पे ख़त्म हो गई, लेकिन स्टिल 1940 में 1942 में क्रिप्स मिशन अगस्त ऑफर जो है अगेन डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहा है। तो इसीलिए आप बोलोगे कि जो गांधी जी है उन्होंने इससे कहा था कि इट इज़ वो कहते हैं अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक, अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक या फिर क्रम्बलिंग बैंक। तो ऐसी जो बैंक है जो क्रम्बल कर रही है, खुद ही खत्म होने जा रही है, उसके अंदर भी आपने पोस्ट डेटेड चेक दे दिया है। क्रम्बलिंग ये किसके लिए बात हो रही थी? क्रिप्स मिशन के लिए। थोड़ा सा ये वाला जो डायलॉग है ये भी आपको देखने को मिलेगा, बहुत बार क्वेश्चंस इसके ऊपर से पूछे जाते हैं। अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रम्बलिंग बैंक। इसके बाद में फाइनली कैबिनेट मिशन प्लान आप 1946 में देखोगे, विच लेड द फ्रेमवर्क फॉर कंस्टिट्यूएंट असेंबली। इसके बाद में अगर बात करें किस तरीके से कंस्टिट्यूएंट असेंबली आगे बढ़ती, तो देखिए उसका फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है अंडर कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अभी हमने देखा ही, मेंबर वेयर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली। प्रोविंशियल असेंबलीज जो थी उसमें से इनडायरेक्टली इलेक्टेड हुए थे जो गए थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। भाई कंस्टिट्यूएंट असेंबली मीन्स क्या हो रहा है? गैदरिंग हो रही है, लोगों का एक असेंबली है, बहुत सारे लोग यहाँ पे जाके बैठेंगे, इट इज़ नोन एज कंस्टिट्यूएंट असेंबली। और ये असेंबली क्या करेगी? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीज़ होगी उसके ऊपर डिस्कस करेगी, उसके अंदर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इसके बारे में बात करेगी, उसको बनाने की कोशिश करेगी, और बनाने के लिए वो सब जितने भी सब चीज़ें हैं वो सब करेगी। तो ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली की बात हो गई। अब कंस्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन किसके अंदर हुआ है? कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर। कैबिनेट मिशन प्लान इसको बोलते हैं कि इस तरीके से ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली आपको बनाना है। अब इसके अंदर जो मेंबर है वो कहाँ से आएंगे? तो ये मेंबर जो है प्रोविंशियल असेंबलीज। भाई ऐसा थोड़ी है कि आपको किसी को भी उठा लेंगे। भाई आज के समय पे अगर आपको कोई चाहिए अच्छे प्रोमिनेंट टीचर चाहिए लेट्स से, तो आप क्या बोलोगे? यूपीएससी की कोचिंग के देखोगे या तो फिर कोई प्रोफेसर देखोगे, कोई यूनिवर्सिटी में जाके देखोगे कि भाई कोई यहाँ पे कौन कौन से अच्छे टीचर हैं। तो वैसा ही उस ज़माने में कौन कौन से लीडर थे वो कहाँ पे मिलेंगे आपको? प्रोविंशियल असेंबली में मिलेंगे। वहाँ पे आपको लीडर, वहाँ पे रिफॉर्मर और भी जो आप बोल सकते हो जो सिग्निफिकेंट पोजीशन पे आपको देखने को मिल रहे हैं वो आपको प्रोविंशियल असेंबली से देखने को मिलेंगे। तो उसके अंदर से डायरेक्ट इलेक्शन नहीं जबकि इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन मीन्स हो रहा है कि पब्लिक जो है डायरेक्ट चूज़ कर रही है अपने में से रिप्रेजेंटेटिव। इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब हो रहा है पब्लिक ने चूज़ किया किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को और वो पर्टिकुलर व्यक्ति थर्ड व्यक्ति को चूज़ कर रहा है। आर यू गेटिंग? ये आपको समझ में आना चाहिए इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज। असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली जहाँ पे लोगों ने असेंबली के अंदर बहुत सारे मेंबर को चूज़ किया है इलेक्टेड। अब वो इलेक्टेड जो जैसे आप देखोगे कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई स्टेट गवर्नमेंट है, अब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर से ही वो जो वहाँ पे 100 200 500 लोग बैठे हैं उसमें से ही आप सिलेक्ट करके उनको सुप्रीम कोर्ट भेज रहे हो या फिर कहीं बाहर भेज रहे हो, और वो जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो गया दे आर द मेंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। टोटल मेंबर्स की बात करें 389 मेंबर्स वेयर देयर, उसमें से 292 प्रोविंसेस के थे, 93 प्रिंसली स्टेट के थे एंड 4 चीफ कमिश्नर। प्रोविंसेस मैंने बताया कि जो ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे थे दैट वाज प्रोविंसेस, प्रिंसली जो प्रिंस के द्वारा कंट्रोल होती थी, एंड 4 चीफ कमिश्नर। यहाँ से आप देखोगे इतने मेंबर आपको अलग अलग जगह से देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद में क्या होता है? 1946 में तो सिंगल था, फिर उसके बाद में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आता है, उसमें इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो जाता है। पार्टीशन हो गया तो बहुत सारे जो कंस्टिट्यूएंट मेंबर थे असेंबली के मेंबर, कोई इधर चले गए कोई इधर चले गए, तो अराउंड समझ लीजिए 90 जो है पाकिस्तान में चले गए एंड 299 आप देखोगे इंडिया में देखने को आपको मिलेंगे आउट ऑफ 389। अब ये जो 299 आपको इंडिया में देखने को मिलेगा आफ्टर पार्टीशन, इनकी इसमें से आप देखोगे फर्स्ट मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946, 207 अटेंडेड आपको यहाँ पे 207 अटेंड करते हुए मिलेगी। फर्स्ट मीटिंग कब थी? 9 दिसंबर 1946। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। देखो आज की है 5 दिसंबर, तो आज से 4 दिन बाद आपको याद होना चाहिए, उस तरीके से याद कर लेना अगर आपको 9 दिसंबर के आसपास ये वीडियो देख रहे हो तो। 9 दिसंबर 1946 आपको फर्स्ट मीटिंग देखने को मिलती है। प्रेसिडेंट सभी को पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके साथ में ड्राफ्टिंग कमेटी कौन बनाएगा, ड्राफ्ट कौन करेगा, किस तरीके से प्रिपेयर करना है, लिखेगा कौन? तो ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके कमेटी के अंदर आपको चेयरमैन देखने को मिलते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।
इसके बाद में वीमेन मेंबर वर ऑल्सो देयर, 15 आपको महिलाएं देखने को मिल जाएगी। एंड वन ऑफ द प्रोमिनेंट वन, उसमें से आपको हंसा मेहता जी दिखेगी एंड दुर्गाबाई देशमुख, ये आपको याद रखना है। दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, और भी आपको बहुत सारी मिल जाएगी, 15 है। 2-3 आपके पास में नाम याद होना चाहिए। सबसे अच्छा है दुर्गाबाई देशमुख याद कर लो, हंसा मेहता जी को याद कर लो। एडॉप्टेड की बात करें 26 नवंबर 1949 को ये एडॉप्ट हमने किया था। अगर आप प्रेम्बल देखोगे तो उसके अंदर भी ये डेट आपको देखने को मिलती है। वी हियर बाय अडॉप्ट एंड गिव अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949, ऐसा कुछ आपको प्रेम्बल के अंदर देखने को मिल जाएगा। एनफोर्स की बात करें 26 जनवरी 1950 से आपको ये एनफोर्स देखने को मिल जाता है। इसे ही हम कहते हैं रिपब्लिक डे। और ये क्यों चूज़ किया हमने? बिकॉज ऑफ पूर्ण स्वराज डे दैट वाज इन 1930। लाहौर का भी जो सेशन बताया था मैंने कि वी हैव द सेल्फ रूल, पूर्ण स्वराज, हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। तो वो डोमिनेंट स्टेटस नहीं, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। तो ये पूर्ण स्वराज आईएनसी की मीटिंग हुई थी लाहौर के अंदर, वहाँ पे बोला गया था झंडा फहरा के। तो ये जो पूर्ण स्वराज का डे था उसको ऑनर करने के लिए, उसको इम्पोर्टेंस देने के लिए 26 जनवरी 1950 का डेट 26 जनवरी का डेट चूज़ कर दिया गया। अब एक बार देखते हैं कंपोजिशन, कौन कौन सी कमेटी थी, किस तरीके से थी कमेटी, उनके चेयरपर्सन एंड देयर फंक्शंस। यूनियन कमेटी की बात करें तो भाई सभी को पता है, सबसे यूनियन जहाँ पे सेंटर की बात हो रही है, तो सेंटर की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप देखोगे जवाहरलाल नेहरू जी कहीं ना कहीं इसके चेयरपर्सन थे। और ये बात कर रहा था किस तरीके से स्ट्रक्चर होना चाहिए यूनियन का। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जवाहरलाल नेहरू जी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है फंडामेंटल राइट्स किस तरीके से होना चाहिए। तो यहाँ पे जीवी कृपलानी जी मिल जाते हैं, ये ड्राफ्ट करते हैं कि किस तरीके से राइट होने चाहिए। तो आज आप जो देखते हो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 सब क्लॉज ए 1A 1B, ये आप देखोगे कहीं ना कहीं ये जीवी कृपलानी की जी के हाथ के नीचे से गए होंगे। उनका इसके अंदर कंट्रीब्यूशन होगा ये नंबर देने में। 19, 20 किसको कौन सा फर्स्ट पे रखना है, किस तरीके से 21 पे ये आना चाहिए राइट टू लाइफ एंड पर्सनल डिग्निटी, 23 पे फोर्स लेबर के अगेंस्ट होना चाहिए, चाइल्ड लेबर का प्रिवेंशन 24 में होना चाहिए। ये जितना भी ये सब आप देखोगे कृपलानी जी के हाथ से गया है। ये थोड़ा सा याद करोगे, इस तरीके से समझोगे तो बहुत आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाएगा। प्रोविंशियल की बात करें तो प्रोविंशियल आपको पता है प्रोविंसेस को कौन ने एक साथ जोड़ के आए थे, दैट वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टेट को जोड़ने में उनका प्रोमिनेंट रोल था, आपको पता है आफ्टर इंडिपेंडेंस। यहाँ पे भी वो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटी को हेड करते आपको मिल जाएंगे। रूल्स ऑफ प्रोसीजर किस तरीके से होना चाहिए, तो ये राजेंद्र प्रसाद जी जो खुद ही कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट भी थे, वही बताते हैं कि किस तरीके से प्रोसीजर का होना चाहिए। वो सब रूल्स यहाँ पे आपको ये डॉक्टर राजेंद्र जी ही कहीं ना कहीं उसको रेगुलेट और वो कमेटी को हेड कर रहे थे। ड्राफ्टिंग कमेटी सभी को पता है BR अम्बेडकर जी, फाइनल ड्राफ्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अम्बेडकर जी का एक कोट है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ mere lawyer's document, it is a vehicle of life and its spirit is always the spirit of the age। सिर्फ ये लॉयर के लिए डॉक्यूमेंट नहीं है कि भाई लॉयर को ही पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ अ व्हीकल ऑफ लाइफ। हम सबकी लाइफ को किस तरीके से नेविगेट करना है, किस तरीके से आगे बढ़ाना है, वो इसका ये व्हीकल है। एंड इट्स स्पिरिट इज़ ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ द एज। और जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है, जो उसकी आत्मा है, वही आज के समय की भी आपको आत्मा देखने को मिल जाएगी। ये बहुत ही अच्छा कोट है, कहीं ना कहीं आप इसका यूटिलाइज कर सकते हो। अब अगर बात करें टाइम एंड कॉस्ट की, तो कितना समय लगा, कितना टाइम आपको ये देखने को मिलता है, तो ये थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ है, ये आपको याद करना चाहिए। यूपीएससी में तो इतना नहीं पूछा गया है, लेकिन जो दूसरे एग्जाम है वहाँ पे बार बार एसएससी में पूछा जाता है। टाइम टेकन 2 years 11 month 18 days, 2 साल 11 मंथ 18 डेज आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे। टोटल सीटिंग कितनी हुई, कितनी बार मीटिंग में बैठे थे, तो 165 सीटिंग हुई है। 11 सेशंस के अंदर 165 बार आप देखोगे सीटिंग यहाँ पे हुई है। कॉस्टिंग 64 लाख, आज के समय पे तो 64 लाख में छोटे से कोई ये सब बड़े से बड़े छोटे से छोटे इवेंट तो कुछ भी नहीं होते, बड़े से बड़े इवेंट में तो 1000 करोड़ 500 1000 करोड़ ऐसे ही खर्चा हो जाते हैं। आर्टिकल्स एडॉप्शन 395 आर्टिकल वेयर देयर, 8 स्केड्यूल्स वेयर देयर। कितने थे? 8, आज कितने हैं? 12। अब ये बताइए आज के समय पे हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर, प्रेजेंट डे पे कितने आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। उस ज़माने में 12 थे। अब यूपीएससी पूछ सकता है कि उस ज़माने में देयर वेयर मोर देन 400 आर्टिकल्स वेयर देयर, 12 स्केड्यूल्स वेयर देयर एट द एडॉप्शन ऑफ
आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपको पता होना चाहिए 395 यहाँ पे आ रहे हैं और ये आ रहे हैं 8 यहाँ पे स्केड्यूल्स। इसके साथ में टुडे आज के समय की बात करें, देयर वर 470 आर्टिकल्स एंड 12 स्केड्यूल्स। अरे यहाँ पे लिखा हुआ ये टुडे आज के समय पे आपको देखने को मिल जाएगा 470 प्लस आर्टिकल है। चलो ठीक है, एग्जैक्ट बताइए कितने आर्टिकल आपको देखने को मिल रहे हैं। 470 प्लस नहीं, एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए। 12 स्केड्यूल्स है, ये तो सभी को पता ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी द सोर्सेज ऑफ। अब देखो जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, आप देखोगे जो फंडामेंटल राइट्स है, तो उस ज़माने में जिन्होंने भी दोज ऑल जो भी वो मेंबर थे या फिर जो कमेटी को हेड कर रहे थे, तो उनके पास में कोई ना कोई एक एग्जाम्पल होना चाहिए सामने, जहाँ पे से वो देख के इस तरीके के फंडामेंटल राइट्स को बना सके, उसको नोट डाउन कर सके, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। थोड़ा बहुत उनके पास में पहले से रफ आइडिया उन्हें होना चाहिए। तो वो रफ़ आइडिया कहाँ से मिलेगा? रफ़ आइडिया आपको मिलता है कि पहले किसी ने अगर वो डोमेन में काम किया है तो उनकी देख के, उनके आइडियाज़ को पढ़ के, उनके ऊपर रिसर्च करके वही चीज़ को कहीं ना कहीं समझ के वहाँ पे हम सीख सकते हैं। तो इन्हें ये सब कहाँ से मिल रहा था? जो जो कंट्रीज़ ऑलरेडी पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना चुकी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात करें तो ब्रिटेन के पास में रिटर्न तो नहीं था लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, तो बहुत सारी जो चीज़ें वहाँ से कहीं ना कहीं सीखी जा सकती थी। यूएसए से आपको सीखी जा सकती है, उस ज़माने में आयरलैंड के पास था, फ्रांस के पास में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, ऑस्ट्रेलिया था, यूएसएसआर थे। तो हर जगह से कोई ना कोई रिसर्च करी, उनको पढ़ा कि वहाँ पे किस फंडामेंटल राइट्स के बारे में वो क्या बोलते हैं, जुडिशरी का रोल क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कितने कोर्ट होने चाहिए, कितने लेयर होने चाहिए, वो सब आप देखोगे अलग अलग कंट्रीज़ के स्टडी करके उनमें से क्या हो सकता है, हमारे यहाँ पे क्या फिट बैठेगा, वो सब का कॉम्बिनेशन करके रिसर्च, डिस्कोर्सेस, डिस्कशन, डिबेट्स, वो सब करने के बाद में कंक्लूजन आया गया है। अब देखो कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ ख़राब है, ये बोलना उस समय पे भी उनके लिए मुश्किल था और आज के समय पे भी मुश्किल है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है, इंडिया भी बड़ी है, यूएसए भी बड़ा है, और आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑल्सो अ ग्रेट कंट्री। तो अब इतनी बड़ी कंट्री है, वहाँ पे उन्होंने उसके हिसाब से रूल बनाया, हमें अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है। तो क्या हमारा मॉडिफिकेशन क्या इंडिया को सूट कर पाएगा, या क्या इंडिया की इतनी डाइवर्सिटी को सूट कर पाएगा? तो ये सब क्वेश्चन उनके ऊपर भी थे कि कौन से राइट को प्रायोरिटी देना चाहिए, कौन से ड्यूटीज़ को प्रायोरिटी देना चाहिए, कौन सी चीज़ को ड्यूटीज़ में रखना है, किसको राइट्स में रखना है, वो सब कॉम्प्लेक्सिटी उनके पास में थी। धीरे धीरे डिबेट करके बहुत सारे ऐसे सेशंस के अंदर कहीं ना कहीं अल्टीमेटली दे हैव रीच टू कंक्लूजन। और आप देखोगे हमारा आज के समय पे जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं वही डिस्कोर्सेज, वही डिबेट्स का आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। अब देखो हम देखते हैं कौन कौन से सोर्सेज आपको देखने को मिल रहे हैं जहाँ से हमने कॉन्स्टिट्यूशन का कोई पार्ट उठाया है। लेट अस सी द यूके पार्लियामेंट्री सिस्टम, आपको सभी को पता है, एंड रूल ऑफ लॉ सभी को पता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट हमारे साथ में है। पार्लियामेंट आप बताइए, पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन से आपको पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, ये बताइए एग्जाम्पल, सॉरी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ। बस इसके आगे आपको खुद लिखना है, मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा। देन रूल ऑफ लॉ, लॉ सबसे सुप्रीम कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का रूल, लॉ का रूल, लॉ के हिसाब से चलेंगे, नॉट अ रूल ऑफ अ मोनार्की, नॉट अ रूल ऑफ एन इंडिपेंडेंट पर्सन, नॉट अ रूल ऑफ किंग और क्वीन, रूल ऑफ लॉ, लॉ के हिसाब से लॉ के हिसाब से ये देश चलेगा। ये यहाँ पे आपको यूके से हमने डिराइव किया था। यूएसए से क्या डिराइव किया? फंडामेंटल राइट्स, जो राइट्स आपके फंडामेंटल होने चाहिए वो कौन कौन से हैं, वो हम यूएसए से डिराइव करते हैं। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी के अंदर किस तरीके से रिव्यू होना चाहिए, किस तरीके से जो भी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट आ रहे हैं, जो भी जुडिशरी कहीं ना कहीं अपना जो ऑर्डर पास कर रहे हैं, क्या उसका रिव्यू कर सकते हैं हम, वो सब जो आपको बताया गया है, दैट इज़ सॉरी वो वाले जो आप देखोगे फीचर है, दैट हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द यूएसए। और फिर प्रियम्बल के वर्ड्स आप देखोगे, वी द पीपल हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये आपको पूरा प्रियम्बल याद होना चाहिए। वी द पीपल ये कहाँ से लिया है? ये कहाँ से हमने यूएसए से एडॉप्ट किया है, बोरो किया है।
इसके बाद में बात करें आयरलैंड से डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी देखो, स्टेट पॉलिसी, स्टेट की पॉलिसी है, क्या होनी चाहिए, इसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब आप बोलोगे स्टेट पॉलिसी, भाई कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो अ स्टेट पॉलिसी। अगर आप ओवरऑल ब्रॉड टर्म में देखोगे, भाई पॉलिसी, पॉलिसी क्या, लॉ, किस तरीके से देश आगे बढ़ना चाहिए, तो स्टेट की जो पॉलिसी है, स्टेट को पॉलिसी बताने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो अ पॉलिसी। तो इसी तरीके से और भी जो स्टेट पॉलिसीज़ बनाएगा, अलग अलग जो एक्ट बताएगा, तो उसके डायरेक्टिव्स क्या रहेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, उसके प्रिंसिपल क्या रहेंगे, उसके कोर एलिमेंट्स क्या क्या रहेंगे। तो कोर एलिमेंट्स में आएगा वेलफेयर ऑफ द पीपल, वेलफेयर ऑफ पीपल, जस्टिस। इसके अलावा यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस तरीके से बातें होने चाहिए। इसके साथ में राइट टू एजुकेशन, राइट टू वेज, राइट टू मिनिमम वेज, ये सब आप देखोगे, ये सब आप देखोगे, दिस वेयर द प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इसके साथ में आप देखोगे कि पंचायत को प्रमोट करना है, आर्टिकल 40, डीपीएसपी का ही पार्ट है, यूसीसी आर्टिकल 44, वेलफेयर आर्टिकल 38। तो ये सब क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। कोई भी पॉलिसी बनाओगे तो इसके अंदर के डायरेक्टिव ये आपको ध्यान रखना है। ये जो प्रिंसिपल है ये आपके डायरेक्ट करेंगे, ये आपके दिशा दिखाएंगे किसको, जो आपकी पॉलिसी आप बनाओगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल लेट से आप कोई पॉलिसी बनाना चाहते हो, आप एक जगह के रूलर हो, आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे पॉलिसी बनाता हूँ, किस तरीके से रूल करेंगे, तो आपको जो डायरेक्शन देंगे, जो प्रिंसिपल, वो डायरेक्शन जो देने वाले प्रिंसिपल है, दे आर डीपीएसपीज। अगर आप इंडिया के अंदर हो तो वो डायरेक्शन कौन से दे रहे हैं, डीपीएसपीज। तो ऐसा ना हो कि आप बोले कि मैं मार काट के किसी को ये इस तरीके की पॉलिसी हो जाए, ऐसा नहीं, वेलफेयर आना चाहिए यहाँ पे कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये आप ध्यान आपको रखना है। स्टेट की बात हो रही है, स्टेट पॉलिसी, नॉट अ प्राइवेट प्लेयर। प्राइवेट प्लेयर बोले तो वो बेनिफिट के लिए काम कर सकता है कोई कंपनी, लेकिन ये बात हो रही है स्टेट की पॉलिसी। स्टेट कोई पॉलिसी बना रही है तो ये सब चीज़ों को उसको ध्यान रखना है। इसके अलावा नॉमिनेशन ऑफ द राज्यसभा मेंबर, राज्यसभा का मेंबर आपको पता है अपर हाउस, लोअर हाउस, बायकैमरल, 1935 से डिराइव हुआ था। वो इसी के अंदर राज्यसभा के जो मेंबर के नॉमिनेशन है आयरलैंड से हमने लिया है। कनाडा की बात करें तो फेडरलिज्म विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। हमारा जो इंडिया है वहाँ पे फेडरलिज्म है, गवर्नमेंट जो पावर है दैट हैज़ बीन डिवाइडेड बिटवीन टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो ये जो फेडरलिज्म, इसको बोलते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के अंदर आप देख रहे हो कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंटर है, दो गवर्नमेंट है लेकिन स्ट्रॉन्ग आपको सेंटर देखने को मिल रहा है। तो ये हमने कहाँ से बोरो किया है, इट हैज़ बीन बोरो फ्रॉम कनाडा। इसके बाद में आते हैं ऑस्ट्रेलिया पे। आ जाओ, ऑस्ट्रेलिया में कॉन्करेंट लिस्ट जॉइंट सीटिंग की बातें आपको मेंशन होती हुई मिलती है। कॉन्करेंट बोले तो आप देखोगे जहाँ पे स्टेट भी बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, यूनियन गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, ऐसे वाली जो लिस्ट है दैट इज़ कॉन्करेंट लिस्ट। इसके अलावा जॉइंट सीटिंग होनी चाहिए राज्यसभा और, भाई राज्यसभा अलग बैठ रहे और लोकसभा अलग बैठ रहे, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि दोनों बैठ जाए एक साथ? अरे हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। भाई आप देखोगे बहुत बार ऐसा होता है, एक क्लास में, क्लास 5th में लेट से 4 सेक्शन है, A B C D। बहुत बार आप देखोगे कभी कभी क्या होता है, ए और बी को साथ में बैठा देते हैं। ठीक है भाई, स्ट्रेंथ कम है तो चलो आ जाओ साथ में बैठो, ए और बी को साथ में बैठा दिया, तो वो क्या हो गया, आप समझ लीजिए वो जॉइंट सेशन हो गया। ठीक है, या तो फिर आप समझ लीजिए पूरे क्लास 5th का एक साथ में हो गया कि पूरे, एक कोई स्कॉलर आया, एक कोई प्रोफेसर आ गया, लेट से मैं ही चला गया कहीं पे, तो उन्होंने बोला कि पूरे क्लास 5th को बुला लो या क्लास 11th को बुला लो, लेट से या 12th को बुला लो। तो ABCD सभी को बुला लिया और एक उनका एक वेबिनार हॉल हो गया है, वहाँ पे सबको बैठा दिया, तो वो क्या हो गया, जॉइंट सेशन आपको देखने को मिल गया। जॉइंट सेशन यहाँ पे किसका हो रहा है, राज्यसभा प्लस लोकसभा का। USSR की बात करें, फंडामेंटल ड्यूटीज़ 5 ईयर प्लान। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आप सभी को पता है, व्हाट आर द ड्यूटीज़। जैसे राइट्स थे वैसे ही आपको ड्यूटीज़ है। ड्यूटीज़ मतलब आपको कुछ ना कुछ अपनी तरफ से परफॉर्म करना है, ऐसे एक्ट, वो आपकी ड्यूटी होती है। तो ड्यूटी AC जो फंडामेंटल है, तो वो हमने कहाँ से डिराइव करी है, वो USSR। USSR मीन्स यूनाइटेड सोवियत रिपब्लिक, वो है ना जो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। उस ज़माने में जो सोवियत के अंदर अलग अलग रिपब्लिक थे, उसका ही आपको ये यूनियन देखने को मिल रहा है। अगर इसकी बात करें तो ये वही है, मतलब आज का जो रशिया आप कह सकते हो, रशिया से हमने लेट्स से फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड 5 ईयर प्लान। अगर आप देखोगे 5 ईयर प्लान पहले जो चलता था, आज के समय पे तो नीति आयोग आ गया है जो कहीं ना कहीं हमारे अलग अलग प्लान और थिंक टैंक के रूप में
एक्ट कर रहा है। बट बिफोर दैट 5 ईयर प्लान जो चलता था वो हमने यूएसएसआर से डिराइव किया था। अब ये बताइए इंडिया में टोटल कितने अभी तक के 5 ईयर प्लान आए हैं? 10, 11, 12, 13। इसके अलावा फ्रांस, आपको उस समय पता है कि फ्रांस के अंदर कहीं ना कहीं रेनेसा आया था। इटली फ्रांस वाले रीजन पे आपको रेनेसा देखने को मिलता है। अब व्हाट इज़ रेनेसा, ये थोड़ा सा आप बताइए, कमेंट करिए। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। आपको पता होगा मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो, ये सब आपको फ्रांस के अंदर बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स देखने को मिलेंगे। और यही कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये बड़े बड़े जो आप डोमेन देखोगे, ये कहीं ना कहीं हमें कहाँ से डिराइव, कहाँ से हमने बोरो किए? ये हमने बोरो किए फ्रांस से। इसके बाद है साउथ अफ्रीका। सभी को पता है साउथ अफ्रीका में गांधी जी गए थे, फिर वहाँ पे कहीं ना कहीं उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी, प्रोएक्टिव रोल प्ले किया था। अमेंडमेंट प्रोसीजर हमने कहाँ से लिए? साउथ अफ्रीका से लिए, कि किस तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। इसके साथ में राज्यसभा के अंदर जो मेंबर जा रहे हैं, लोकसभा में तो डायरेक्ट इलेक्शन हो रहे हैं, डायरेक्ट इलेक्शन। अब लोकसभा तो कहाँ से सीखेंगे? तो ईजी है। राज्यसभा में कहाँ से हम लोगों को लेके जाए, तो वो कहाँ से किस तरीके से इलेक्ट किया जाए, किस तरीके से होना चाहिए, दैट हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। इसके बाद में जर्मनी। जर्मनी आपको पता है कि वहाँ पे हिटलर था, तो वहाँ पे हमेशा इमरजेंसी वाली सिचुएशन रहती थी, तो वहाँ इस तरीके से आप समझ सकते हो कि वी हैव टेकन इमरजेंसी प्रोविजंस फ्रॉम द जर्मनी। ठीक है, अगर इसका अंदर डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओवरऑल इतना ही पूछा जाता है। ठीक है, नहीं तो फिर अगर हम देखें तो जर्मनी के ऊपर से जो वाई वी हैव टेकन इमरजेंसी फ्रॉम जर्मनी, इसके ऊपर ही अगर लेक्चर देखें तो बहुत डिस्कशन हो सकता है। अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, अभी हमें कहाँ से लिया है बस उतना याद करना है। नाउ लेट अस लुक एट द सेलिएंट फीचर्स अल्टीमेटली। अब देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर आपको मिल रहे हैं, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी प्लस फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिड आपको पता है कि उसको मोल्ड नहीं किया जा सकता है, काट छाट, या फिर आप उसको चाहे तो आप उसको अमेंड करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको रिजिड देखने को मिल रहा है। देयर इज़ अ प्रोसीजर, वो प्रोसीजर के हिसाब से आप उसको मोल्ड कर सकते हैं। ये हो गया रिजिडिटी वाला एलिमेंट। अब यहाँ पे आ रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी भी है भाई। फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑल्सो देयर, कि भाई आप मोल्ड कर सकते हो, इफ़ यू वांट यू कैन मोल्ड, लेकिन मोल्ड करने की एक प्रोसीजर है। अगर हम देखेंगे तो मोर देन, आप देखोगे 105 टाइम अमेंडमेंट हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 टॉक्स अबाउट अमेंडमेंट प्रोसीजर एंड ऑल दोज थिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये 368 के अंदर अमेंडमेंट हुआ है 105 टाइम, मतलब फ्लेक्सिबल आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कि कुछ गड़बड़ लग रही है, कुछ एडिशन करना है, कुछ कट शॉर्ट करना है, तो वो हम कर सकते हैं। देयरफॉर ये क्या है, इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसके बाद है यूनिटरी एंड फेडरल। इसका भी आपको सिंथेसिस देखने को मिल रहा है। यूनिटरी जब इमरजेंसी लगती है तो वो यूनिटरी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और फेडरल, फेडरल हमको पता है फेडरल प्रोसेस हमने कहाँ से लिया था, कोई बताइए फेडरल कहाँ से लिया था हमने? ये देखो, कनाडा से हमने क्या लिया था, फेडरलिज्म विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। ये था कनाडा फेडरल फीचर्स। ऑल्दो फेडरल आप देखोगे तो फेडरल पहले से भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं फेडरलिज्म के अंदर जो स्ट्रॉन्ग सेंटर आ रहा है, फेडरल फीचर्स आप देखोगे वो तो कहीं ना कहीं 1935 के एक्ट से भी आया था, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग सेंटर है वो वाला जो फीचर है दैट हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द बोरोड फ्रॉम द कनाडा। और दोनों का सिंथेसिस है, यूनिटरी भी आ रहा है भाई, फेडरल भी आ रहा है। जब मौका मिलेगा, कंडीशन ऐसी आ गई तो यूनिटरी बन सकता है, नहीं तो फेडरल तो है ही। बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सोशल वेलफेयर। ठीक है, आप देखोगे डीपीएसपी के अंदर सोशल वेलफेयर की बात हो रही है, इंडिविजुअल लिबर्टी की बात हो रही है फंडामेंटल राइट्स के अंदर। तो लिबर्टी आप देखोगे आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, 15, 16, कहीं ना कहीं इसके अंदर लिबर्टी राइट्स की बातें होती है। और सोशल वेलफेयर की बात करें तो डीपीएसपी के अंदर आ रहा है, तो दोनों के अंदर बैलेंस होना चाहिए। इसके ऊपर से आप देखोगे बहुत बार ये जुडिशरी के अंदर गया था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इसका क्या है, अल्टीमेटली ये आया कि दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो डेमोक्रेसी का स्पिरिट आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। एंड अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी किसके ऊपर, लेजिस्लेचर के ऊपर, एग्जीक्यूटिव के ऊपर एंड जुडिशरी के ऊपर। अकाउंटेबिलिटी क्या है, लेजिस्लेचर कुछ भी अगर कर रही है, लेजिस्लेटर काम क्या है, पॉलिसी फ्रेम करना, स्टेट पॉलिसी फ्रेम करना। अगर स्टेट पॉलिसी अगर वो डीपीएसपी के अकॉर्डिंग नहीं कर रही है, डीपीएसपी ऑलरेडी गिवन है, या फिर डीपीएसपी के अगेंस्ट कर रही है, तो ऐसी पॉलिसी कहीं ना कहीं जो है इट कैन बी
डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड मतलब खोखला घोषित कर सकती है। हु कैन डिक्लेयर द नल एंड वॉइड? सुप्रीम कोर्ट, इवन हाई कोर्ट कैन ऑल्सो डू। लेकिन लेट्स से जो जुडिशरी है, जुडिशरी अगर ओवरऑल पर्सपेक्टिव, जुडिशरी कहीं ना कहीं नल एंड वॉइड इसको कर सकती है, बिकॉज इट इज़ ब्रीचिंग द वैल्यूज दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सुप्रीम लॉ कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट अ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के पास में पावर कहाँ से आई है? वो आई है कॉन्स्टिट्यूशन से। तो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इसके बाद में आ रहा है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या है? मनमाने तरीके से आर्बिट्ररी एक्शन ले सकता है, जैसे जो सरकार है वो कुछ भी कर सकती है। तो उनको रेगुलेट करने के लिए लेजिस्लेचर में कि भाई आप हमारे सामने रिपोर्ट, यू हैव टू प्रेजेंट रिपोर्ट बिफोर अस। क्वेश्चन आवर होते हैं, क्वेश्चन आवर के अलावा एडजमेंट आवर होते हैं, इसके साथ में मीटिंग होती है, डिबेट होते हैं, डिस्कशन होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब क्या है? एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल करने की कोशिश है, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव भी अगर कुछ मनमानी कर रहा है तो जुडिशरी कहीं ना कहीं उसको रेगुलेट कर सकती है। फॉर एग्जांपल आप देखोगे इमरजेंसी के समय पे, और उसके अलावा कोई भी अगर एग्जीक्यूटिव भी कोई इलॉजिकल एक्शन ले लेता है, इरेशनल एक्शन ले लेता है, तो कहीं ना कहीं जुडिशरी कम टू अ प्ले। इसके अलावा जुडिशरी क्या करती है? जुडिशरी को भी कहीं ना कहीं अगर कोई रैंडम एक्शन ले लेता है, उसको रिफॉर्म करने की बात है, तो लेजिस्लेचर प्लेज अ क्रिटिकल रोल। अगर आपको पता होगा एनजेक की बात हो रही थी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। एनजेक बोले तो ये जुडिशरी के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर जो टॉप जजेस है उनका अपॉइंटमेंट कैसे होना चाहिए, मतलब टॉप नहीं, मतलब सभी जजों का, सुप्रीम कोर्ट के जज का किस तरीके से अपॉइंटमेंट होना चाहिए। तो ये तो अभी सुप्रीम कोर्ट खुद ही कर रहा है, जुडिशरी खुद ही अपने हिसाब से रिक्रूट कर रहा है। तो भाई ये अगेंस्ट, ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। इसके अलावा ये सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट भी है। इसके अलावा ये जो है कहीं ना कहीं करप्ट एक्टिविटीज़ और ऐसी एक्टिविटीज़ को भी प्रमोट कर सकता है। तो लेजिस्लेचर अगर इसको कंट्रोल करेगा तो क्या होगा? एक थोड़ा सा फाइन एलिमेंट होगा। तो वो एनजेक कहीं ना कहीं उसी में से आपको देखने को मिलता है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, ठीक है। हालांकि जुडिशरी ने इसको नल एंड वॉइड करा दिया, लेकिन आप देखो इस तरीके से एक दूसरे पे रेगुलेट कर सकते हैं ताकि कोई अपनी पावर को ब्रीच ना करे। अब देखो प्रीलिम्स का आपको एमसीक्यू देखने को मिल रहा है, कॉन्सेप्ट आपका देखते हैं कितना अच्छा यहाँ पे अभी तक के आपने देखा है, पढ़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस डायर्की इन प्रोविंसेस? डायर्की आपको अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो, डायर्की प्रोविंसेस में कौन लेके आया है, किसने इसे इंट्रोड्यूस किया है? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, 35 एंड 1947 का इंडिपेंडेंस एक्ट। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो 1909 में आपको पता है जो है सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम हुआ था, तो ये तो नहीं होना चाहिए। 35 में आपको पता है बाय कैमरल लेजिस्लेचर हुआ था, तो ये भी नहीं होना चाहिए। बाय कैमरल एट द सेंटर, बाय कैमरल एट सेंटर ही, एंड डायर्की एट सेंटर भी हुआ था यहाँ पे, डायर्की एट द रेट सेंटर। और बताइए, इसके अलावा था एक, आप देखोगे ऑल इंडिया फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन की बात हो रही थी, डायर्की एट द सेंटर की बात हो रही थी। एट द सेम टाइम आप देखोगे बाय कैमरल लेजिस्लेचर, बाय कैमरल लेजिस्लेचर कहाँ पे था? ये एट प्रोविंसेस। यहाँ पे 19 के अंदर बाय कैमरल लेजिस्लेचर हो जाता है एट सेंटर, और डायर की आ जाती है प्रोविंस पे, मतलब इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ बी। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तो अभी हमने देखा है, इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन वाला बात हो गई। इसके अलावा मेंस का क्वेश्चन है, डिस्कस द लीगेसी ऑफ ब्रिटिश रूल इन शेपिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप कहीं ना कहीं से आप देखो कहाँ से 1773, 1784, सॉरी 1774, 83, यहाँ से आप कहीं ना कहीं वहाँ से आ सकते हो, रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट कर सकते हो, पिट्स इंडिया एक्ट से स्टार्ट कर सकते हो, और फिर चाहो तो कहीं ना कहीं 1909, 1919 उसको भी कहीं ना कहीं इंक्लूड कर सकते हो। 35 तो आना ही चाहिए उसके अंदर। 35 में ऑल इंडिया फेडरेशन हो गया, डिवीजन ऑफ पावर आ जाता है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात होती है, डायरेक्ट एट द सेंटर होता है, बाय कैमरल लेजिस्लेचर एट द प्रोविंसेस होता है। 35 की बात कर रहा हूँ, फेडरल कोर्ट की बात हो जाती है, आरबीआई की बात होती है, पीएससी की बात यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अ बोरोड बैग येट यूनिक इन कैरेक्टर। बोरो तो हुआ है, आप बोरो करके आ रहे हो इधर उधर से, लेकिन स्टिल इट इज़ अ यूनिक इन कैरेक्टर। अब ये यूनिक किस तरीके से है, तो ये आपको थोड़ा बहुत बताना
है। ठीक है, अभी बहुत सारे एलिमेंट, अभी तो पहली क्लास है, लेकिन धीरे धीरे हम और भी एलिमेंट देखेंगे तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से यूनिक है। लेकिन थोड़ा बहुत आप भी बताइए किस तरीके से हम यूनिक आपको देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो है जितने भी बोरोड फीचर है वो ऐसा नहीं कि पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया, इट हैज़ बीन कॉपी पेस्टेड नहीं, इट हैज़ बीन मोल्डेड अकॉर्डिंग टू आवर करंट सिचुएशन। हमने अपने हिसाब से इसको मोल्ड कर दिया है। अगर बात करें देखो समरी फ्रॉम 1773, जो सॉरी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाला था, वहाँ से लेके तो 1950 तक के इंडिया ट्रेवल्ड अ जर्नी फ्रॉम कंपनी रूल। उस समय कंपनी करती थी रूल। कंपनी क्या थी, ट्रेडिंग करने आई थी, लेकिन धीरे धीरे पॉलिटिकल यूनिट बन गई और अपने आप को रूल करने लग गई वहाँ पे बंगाल वाले रीजन के अंदर। टू कॉन्स्टिट्यूशनल रूल, कंपनी का रूल चलता था उस ज़माने में। मैंने क्या बोला, कंपनी अपने हाथ में पूरी पावर थी, करप्शन या फिर आप कह सकते पावर करप्ट। तो एब्सोल्यूट पावर थी इनके पास में, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूट करप्शन। तो और अब्यूज़ ऑफ पावर भी होता ही था, जिसके पास में एब्सोल्यूट पावर है तो वो अब्यूज़ ऑफ पावर तो करता ही था। तो वो अपने हिसाब से काम करते थे, यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन करते थे, बहुत ही कम पैसा देते थे और वो सब आपको पता ही है बाकी तो चीज़ें। और इससे क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल, अभी इससे क्या हो गया, कंपनी के रूल से हम कॉन्स्टिट्यूशन के रूल तक के आ गए। द पेन ऑफ पार्टीशन, द डिबेट्स ऑफ डेमोक्रेसी। पार्टीशन हुआ, सबसे बड़ा पेन हमारे लिए तो वही था। डिबेट्स होती थी डेमोक्रेसी के लिए एंड द विजन ऑफ इक्वलिटी, all were inked into a one document that is called the Constitution of India. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा यहाँ पे आपको वर्डिंग देखने को मिल रही है। ऑल द डिबेट्स ऑफ डेमोक्रेसी, ऑल द विजन्स ऑफ इक्वलिटी, ऑल द पेन्स ऑफ पार्टीशन, एज वेल एज ऑल द history of 200 years of exploitation and all the sacrifices of our Indian freedom struggle leaders has been culminated in the Constitution of India, the supreme law of the land, the rule of the supreme law of the land, of course, at the same time, and at the same time आप देखोगे that is सुप्रीम पावर, जहाँ से हम डिराइव कर रहे हैं, जहाँ से गवर्नमेंट के ऊपर आ रहा है लिमिटेशंस ऑन द गवर्निंग अथॉरिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या प्रोवाइड किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने लिमिट किया है कोई भी आर्बिट्ररीनेस, आइदर बाय लेजिस्लेचर, आइदर बाय एग्जीक्यूटिव और आइदर बाय जुडिशरी। और भी अगर कोई दूसरा भी आ जा रहा है मीडिया वगैरह भी, तो इट इज़ ऑल्सो रेगुलेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नाउ इन द नेक्स्ट class we will cover salient features, preamble, union and its territory. अभी हमने salient features में just एक broad perspective लिया था, that is flexible rigidity. In the next class we will look in detail किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से और अच्छे तरीके से हम फीचर्स को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इट विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, बैक टू बेसिक। ये देखो सीक्वेंस, आज की हमारा क्लास में क्या हुआ है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक पार्ट आपका आज यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट पार्ट। धीरे धीरे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऑल दो ये आज का छोटा पार्ट था, लेकिन आप देखोगे बड़े बड़े पार्ट भी आएंगे। पार्लियामेंट इज़ अ बिग वन, सेंटर स्टेट रिलेशन इज़ अ बिग वन, कॉन्स्टिट्यूशन, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आर द बिग वन। और भी आप देखोगे लोकल गवर्नमेंट, यूटीज, ट्राइब, दे आर ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट। तो वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि हमें ज़्यादा समय लग जाए। नॉनदलेस इट्स अ फर्स्ट क्लास, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास एज वेल। सेलिएंट फीचर हम कल देखेंगे। ओके, कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी इशू हो, कहीं पे दिक्कत आ रही हो, तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, एज वेल एज जो जो मैंने क्वेश्चंस पूछे उसका आपको आंसर भी देना है। और ये बताइए लास्ट में, हाउ वाज द सेशन, किस तरीके से कैसा लगा आपको, आपकी लाइफ में ये सेशन देखने के बाद आपकी प्रिपरेशन में कोई इम्प्रूवमेंट हो रहा है? हो रहा है तो आप बताइए, समझ में आ रहा है, मेंशन करिए सब। ओके, थैंक यू एवरीवन। बाकी फिर जिसको भी लग रहा है तो आप बैच ज्वाइन कर लीजिए। बैच के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो ठीक है, नहीं तो लेट मी एक्सप्लेन। 90 डेज़ का प्लान है, 90 डेज़ के अंदर वी आर कवरिंग 6 फंडामेंटल सब्जेक्ट्स।
और आप देखोगे 90% क्वेश्चंस, हमने 2025 का भी एनालिसिस किया था, 90% क्वेश्चंस आपको ये 6 सब्जेक्ट से ही देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट। हाउ मेनी क्वेश्चंस? 90+ क्वेश्चंस, 90% प्लस। और जितने बचे हुए क्वेश्चन है कहीं ना कहीं वो भी रैंडम क्वेश्चन है, या तो फिर डिराइव हो रहे हैं, या तो फिर करंट अफेयर का कुछ आपको रैंडम, जे फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन हो गए, दिस आर रैंडम क्वेश्चन। करंट अफेयर का कोई कुछ भी पूछ लिया रैंडमली, लेकिन 90% जो गेम है दैट इज़ इन आवर हैंड। ऐसा नहीं है कि पूरा 90% के 90% आ जाएगी लेट एटलीस्ट, लेकिन स्टिल अगर हम हमारी कमांड रहेगी इस पर तो बहुत सारे क्वेश्चन पे वी हैव 50-60 क्वेश्चंस तो हमारे इजीली क्रैक हो जाने चाहिए फ्रॉम द 90%। जो 90 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से 50-60 तो हो जाएंगे। और अगर 60% भी अगर आप तक जा रहे हो, 60 क्वेश्चन करेक्ट, तो कहीं ना कहीं यू आर इन द सेफ प्लेस, क्योंकि आजकल जो कट ऑफ जा रहा है 85-89 के आसपास जा रहा है। तो ये हम 90 डेज़ में 6 सब्जेक्ट करेंगे। किसको भी ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम पे आप आ सकते हो, माइंड्स ऑफ यूपीएससी टेलीग्राम चैनल है। इसके अलावा इफ़ यू वांट टू हैव अ कॉन्टैक्ट 8962586217, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। और जो हमारी बैच चल रही है दैट इज़ दिसंबर टू फेब, मार्च के शुरुआत तक के चलेगी। और उसके अलावा ये बैच के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी और ये जो 6 सब्जेक्ट है वो सब डिटेल में कवर कराएंगे। जैसे आज के सेशन आपको देखने को मिल रहे हैं वैसे आपको रेगुलरली सेशन देखने को मिलेगा। 90 डेज़ के अंदर क्रैश कोर्स, फाउंडेशन कोर्स आपका एवरीथिंग विल बी कवर्ड। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। किसी को ज्वाइन करना है डेफिनेटली, ये 90 डेज़ में ऐसा होता है दिसंबर जनवरी में कहीं ना कहीं हमारा टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। तो दिसंबर जनवरी का आप फुल यूटिलाइज़ करो और यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएगी। ठीक है, आई पर्सनली हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ 6 CSE मेंस, तो आप मेरे एक्सपीरियंस का यूज़ लो और उससे अपनी प्रिपरेशन को और बेटर बनाओ। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।